Good evening. Good evening. So good evening to all of you. Hi नरसिम्हा, अंशुमन, वेदांत, रेणुका, पृथ्वीराज, ये क्या नाम है? चिरस्मिता, स्वप्नमय, साक्षी, शिल्पा, अभरा, आदित्य, रेणुका. ठीक है, ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. ओके फाइन, दिस इज फाइन. ओके ओके, यहाँ के बीच में. ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो लास्ट टाइम लेक्चर वाज लेफ्ट हाफ, तो रिपीट दिस लेक्चर. ठीक है, विल रिपीट दिस लेक्चर. क्लाविकल स्कैपुला हो गया था, ह्यूमरस वाज लेफ्ट, बट आई रिपीट दिस लेक्चर एंड देन जो भी अभी तक किया है, व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, आई जस्ट क्विकली रिवाइज इट. ठीक है, ओके. So once again coming to the clavicle, once again clavicle, once again the same thing I'm repeating. Clavicle scapula, humerus was left. तो bones of opponent part 1 repeat हो रहा है. ठीक है, so चलो we'll start. Clavicle, this is the clavicle. अब कैसे साइड आइडेंटिफाई करोगे? The medial end is quadrangular. सबने पढ़ा है ना ये? Medial end is quadrangular, lateral end is flat. ठीक है, upper superior surface is smooth, inferior surface shows the presence of a groove, subclavian groove. The shaft is convex anteriorly in its medial 2/3. Shaft is convex anteriorly in its medial 2/3. बस इतना याद रखो. These are the characteristic of clavicle. Yes, जनरल एमब्रियोलॉजी लास्ट ईयर के प्रारंभ बैच से कर लो. जिसका कॉलेज चल रहा है, you can refer to last year's प्रारंभ बैच 2024. बहुत डिटेल्स में लिया है लेक्चर्स, you can go through that. ठीक है. Good evening once again. So clear with clavicle is clear. Now what is the characteristic of this bone? It is the only long bone placed horizontally. First bone to ossify. Ossifies partly in a membrane. Two centers of ossification, two primary centers, and it is pierced by the middle supraclavicular nerve. Middle supraclavicular nerve. Commonest site of fracture of this bone is the junction of medial 2/3 lateral 1/3. Medial 2/3 lateral 1/3 का site है, which is the commonest site of fracture of this bone. ठीक है. So we'll okay. Okay. Sorry to hear that. Fine. We'll start now. Clavicle के दो ends है, medial and lateral end. So medial end is quadrangular. This medial end, मतलब the clavicle articulates with the manubrium sterni. बच्चों, इसमें ना last time बहुत students को confusion था. Yeah, I might have said it wrongly. The clavicle articulates with the manubrium sterni. What is the name of the joint? Sternoclavicular joint. Sternoclavicular joint. What is the type of joint? It's a saddle type of synovial joint. Saddle type of synovial joint. ठीक है. Sternoclavicular joint, saddle type of synovial joint. जो manubrium sterni, body of sternum के बीच में joint होता है, that is the manubrosternal joint. Manubrosternal joint is a secondary cartilaginous joint. ये clear है? Manubrosternal joint is a secondary cartilaginous joint. The sternoclavicular joint is a saddle type of synovial joint. ठीक है. अगर मैंने last time कुछ अलग बोला है, is this fine? Clear to all of you? Okay, and the manubrosternal joint is a secondary cartilaginous joint. Fine. The medial end also gives attachment to the fibrous capsule. Synovial joint है तो fibrous capsule होगा. So medial end gives attachment to the fibrous capsule. Anything else? The medial end gives attachment to the fibrous capsule. It gives attachment to the articular disc. याद है articular disc sternoclavicular joint में होता है, wrist joint में होता है, TM joint में होता है, articular disc plus interclavicular ligaments. तो clavicle के बीच में ligaments होगा, interclavicular ligaments. Fine. That's about the medial end. Medial end. हाँ, ये बोला था मैंने, रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, रिपीट कर रहा हूँ. I'm just repeating this lecture. ठीक है, ये रिपीट कर रहा हूँ, एक बार वापस सुन लो. Lateral end is flat. Lateral end articulates with acromion process. Acromioclavicular joint. Acromioclavicular joint is a plain synovial joint. बस quick revise कर रहा हूँ. Now coming to the shaft. Medial 2/3. Medial 2/3 is convex anteriorly. Medial 2/3 convex anteriorly होता है. यहाँ पे एक मसल अटैचमेंट होता है, नाम है pectoralis major. यहाँ पे on the medial side यहाँ पे होता है sternocleidomastoid. नीचे एक groove होता है, groove that is known as the subclavian groove. वहाँ पे होता है subclavius muscle. जो margins होता है, the margins of this groove gives attachment to clavipectoral fascia. Fine. Lateral 1/3 is concave anteriorly. नीचे एक tubercle होता है, conoid tubercle. एक ridge होती है, trapezoid ridge. Conoid tubercle and trapezoid ridge gives attachment to a ligament जिसका नाम है coracoclavicular ligament. Coracoid process से clavicle तक. ये clavicle ऐसे है. So from the coracoid process to the clavicle. Coracoid process से clavicle तक एक ligament होता है जिसका नाम है coracoclavicular ligament. ये मैंने last time बोला था. Coracoclavicular ligament के दो parts होता है, conoid part and trapezoid ridge. Conoid part and trapezoid part. So conoid part is attached to the conoid tubercle here, and the trapezoid part is attached to the trapezoid ridge. ये ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? Clavicle क्लियर है? Which is the commonest site of fracture. The junction of medial 2/3 lateral 1/3 is the commonest site of fracture. The fracture होता है तो the medial end is pulled upwards because of sternocleidomastoid. Lateral end is pulled downwards because of deltoid. Because of deltoid. हेलो क्लियर है? ये क्लियर है? Clavicle फाइन, इजी. lateral 1/3 से ये कौन सा मसल होता है? आगे deltoid, पीछे होता है trapezius. फाइन. आगे pectoralis major here, sternocleidomastoid, and पीछे होता है sternohyoid. पीछे की तरफ होता है sternohyoid muscle. बच्चों ये क्लियर है ना? Clavicle क्लियर है? To all of you, कोई डाउट है इसमें? Clavicle is a very important bone. Fine. So now we come to the scapula. Quick revision कर रहा हूँ. Quick revision. Scapula. Scapula कैसे आइडेंटिफाई करोगे? Glenoid cavity is on the lateral side. Glenoid cavity lateral side पे होता है. The coracoid process is anterior. The spine is posterior. Spine पीछे होता है, coracoid process आगे होता है. Glenoid cavity is on the lateral side. So this is the scapula of my left side. My left side. Left scapula ये. Glenoid cavity is lateral. Spine is on the dorsal aspect or the posterior aspect. So this is the scapula of my left side. Because of trapezius. नहीं बच्चे, the lateral part is pulled down. The lateral part is pulled down because of deltoid. Trapezius नहीं है. Trapezius उसको ऊपर खींचेगा ना. Trapezius ऊपर खींचेगा. Deltoid नीचे खींचता है. Medial part is pulled up. Lateral part is pulled down. Because of deltoid. अमन, अरमान. Fine. Scapula will start now. Scapula के दो surfaces है. A costal surface यहाँ पे होता है subscapularis muscle. Dorsal surface पे spine होता है which divides the scapula into supraspinous fossa, infraspinous fossa. Supraspinous fossa से होता है supraspinatus. Infraspinous fossa से होता है infraspinatus. Right? So the supraspinous fossa and infraspinous fossa are connected. यहाँ पे connection होता है जिसका नाम है spinoglenoid notch. Spinoglenoid notch. ठीक है? Now that's about the surfaces. Coming to the three borders: superior border, medial border, lateral border. Superior border यहाँ पे एक notch होता है जिसका नाम है suprascapular notch. This suprascapular notch is converted into a foramen. ये foramen बनता है इसका by transverse scapular ligament. Transverse scapular ligament. हाँ, स्कैपुला एक्सप्लेन कर रहा हूँ अबरा. तो ये है ना सुपीरियर, ये सुपीरियर बॉर्डर है स्कैपुला का. सुपीरियर बॉर्डर यहाँ पे एक नॉच होती है. सुपीरियर बॉर्डर पे यहाँ पे एक नॉच है जिसका नाम है सुप्रास्कैपुलर नॉच. दिस सुप्रास्कैपुलर नॉच इज कन्वर्टेड. यहाँ पे एक लिगामेंट होता है. लिगामेंट का नाम है ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट. ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट. सो दिस इज द सुप्रास्कैपुलर नॉच. अब ये जो सुप्रास्कैपुलर नॉच है ना, सुप्रास्कैपुलर नॉच इज प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर बॉर्डर विद द ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट. दैट्स अ ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट. अब ये बना सुप्रास्कैपुलर फोरामेन.
foramen. You understanding? This is the suprascapular notch. That's a transverse ligament. ये बना suprascapular foramen. What passes through the foramen? What passes through the foramen is the suprascapular nerve जो supraspinatus, infraspinatus उसको supply करेगा. And what goes from above? इसके ऊपर से जाता है suprascapular artery. So ऊपर से जाएगी suprascapular artery and through the foramen goes the suprascapular nerve. Suprascapular nerve. Good evening to all of you. ठीक है? तो superior border नॉच होता है, नाम है सुप्रास्कैपुलर नॉच. ये सुप्रास्कैपुलर नॉच को एक लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट, कन्वर्ट्स दिस नॉच इनटू अ फोरामेन. इसका फोरामेन बन गया सुप्रास्कैपुलर फोरामेन. व्हाट पासेस थ्रू द फोरामेन इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड ऊपर से जाती है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी. सुप्रास्कैपुलर आर्टरी. फाइन. यहां पे एक मसल अटैच होता है. लास्ट टाइम आई टोल्ड दिस मसल इज द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड. सुपीरियर बेली नहीं है, सुपीरियर बेली इज अटैच्ड टू द हायोइड बोन. इधर होता है सुपीरियर बेली. इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड इज अटैच्ड टू द सुपीरियर बॉर्डर. इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, ये याद रखना, सुपीरियर बेली नहीं है. फाइन. नाउ कमिंग टू दिस इज द मीडियल बॉर्डर. मीडियल बॉर्डर कॉस्टल सरफेस पे यहां पे एक मसल था, नाम है सेरेटस एंटीरियर. मीडियल बॉर्डर डॉर्सल एस्पेक्ट पे फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द स्पाइन, यहां पे है लेवेटस स्कैपुले, ऑपोजिट टू द स्पाइन रोम्बोइडस माइनर एंड बिलो द स्पाइन इज रोम्बोइडस मेजर. सो लेवेटस स्कैपुले, रोम्बोइडस माइनर, रोम्बोइडस मेजर. लैटरल बॉर्डर ऊपर है टेरिस माइनर, नीचे है टेरिस मेजर. सो रोम्बोइडस माइनर, टेरिस माइनर, रोम्बोइडस मेजर, टेरिस मेजर. फाइन. Is this clear? Following this? Omohyoid. Fine. Three angles. This is the superior angle. ये होगा inferior angle and ये होगा lateral angle. So superior angle ये है at the junction of superior border and medial border. ये superior angle at the junction of medial and lateral border. That's the inferior angle. Inferior angle के dorsal aspect पे होता है latissimus dorsi. Latissimus dorsi. This is the lateral angle. Glenoid cavity को lateral angle भी बोलते हैं. ऊपर there is a tubercle. Just understand this. ये समझ लो. So ये है scapula. ये है glenoid cavity. ये glenoid cavity. तो ऊपर एक tubercle है, नीचे एक tubercle है. इसका नाम है supraglenoid tubercle. Supraglenoid tubercle. इसका नाम है infraglenoid tubercle. Infraglenoid tubercle. Fine. So glenoid cavity है, ऊपर एक tubercle है, supraglenoid tubercle, नीचे एक tubercle है, infraglenoid tubercle. Fine. Now this supraglenoid tubercle gives origin to the long head of biceps brachii. Long head of biceps. Long head of biceps. And infraglenoid tubercle, ये supraglenoid है, ये infraglenoid tubercle gives origin to long head of triceps. Long head of triceps. सब समझ में आ रहा है ये? So supraglenoid tubercle, long head of triceps, long head of biceps, infraglenoid tubercle से long head of triceps. बस इतना याद रखो. Fine. Now coming to this spine of the scapula. Spine. So spine मैंने बोला था, spine का तीन borders होता है. This is the अपर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर. ये है पोस्टीरियर बॉर्डर, जहां पे मेरा अपर फिंगर है ना, दिस ऊपर वाला, दैट्स द अपर बॉर्डर. ये है लोअर बॉर्डर. और सुपीरियर बॉर्डर बोलो, इंफीरियर बॉर्डर बोलो, एंड बीच में होता है लैटरल बॉर्डर. इफ यू सी दिस, दैट्स फाइन. सो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन इज कंटीन्यूअस विद द मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियम. द सुपीरियर बॉर्डर कंटीन्यूअस विद मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियम. इंफीरियर बॉर्डर इज कंटीन्यूअस विद लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियम. इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन कंटीन्यूअस होता है लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियम के साथ. सुपीरियर बॉर्डर कंटीन्यूअस होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियम के साथ. तो यहां पे ओरिजिन होता है डेल्टॉइड का, यहां पे ओरिजिन होता है ट्रेपीजियस, इंसर्शन होता है ट्रेपीजियस का. सो सुपीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियम, दैट्स द ट्रेपीजियस का इंसर्शन एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ डेल्टॉइड. एक्रोमियल प्रोसेस का सुपीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस है. इंफीरियर सरफेस यहाँ पे एक बर्सा होता है जिसका नाम है सब एक्रोमियल बर्सा. एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे देयर इज अ बर्सा, नाम है सब एक्रोमियल बर्सा. इफ देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस बर्सा, अगर ये बर्सा इन्फ्लेम हो जाता है एंड वी प्रेस हियर, यहाँ पे अगर आप प्रेशर देते हो जस्ट बिलो द एक्रोमियल प्रोसेस, पेन होता है. पेन, दिस इज नोन एज Dobberg sign. Dobberg sign वो मैं दिखाता हूं आपको. So if we press just below the acromial process, pain होता है because of subacromial bursitis. Bursitis is inflammation of the bursa. जब abduction करते हैं ना, abduction, so ये bursa निकल जाता है. bursa यहाँ से निकल जाता है. It comes below the coracoacromial arch. ये क्या है acromial process? ये क्या है coracoid process? What is this ligament here? This is known as the coracoacromial ligament. So ये जो subacromial bursa है, that comes below the coracoacromial ligament. Fine. So the pain disappears. So what is Dobberg sign? Dobberg sign. Pressure just below the acromial process with the arm by the side. मतलब arm ऐसे side पे है, आप pressure लगाओ यहाँ पे तो pain होता है, pain. And जैसे abduction करते हैं तो the pain disappears off. Why? Because the subacromial bursa goes below the coracoacromial arch. It goes below the coracoacromial arch. हाँ, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन. अरे बच्चे, ये स्पाइन है ना, ये सुपीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, ये इंफीरियर बॉर्डर, या फिर एंटीरियर बोलो, पोस्टीरियर बोलो, दैट्स फाइन. अब ये पोस्टीरियर बॉर्डर पे एक क्रेस्ट भी दिया गया है, इन द बुक इट इज गिवन एज क्रेस्ट. सो डोंट गो इनटू दैट डिटेल्स, जस्ट रिमेंबर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन, और एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर सेम, यानी कि लैटरल बॉर्डर होता है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. एग्जामिनर बस पूछता है व्हाट इज द मसल अटैच्ड हियर, राइट? सो डोंट गो इनटू दैट डिटेल्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है बाद में. फाइन. नाउ कमिंग टू दिस प्रोसेस, ये है कोरोकॉइड प्रोसेस. कोरोकॉइड प्रोसेस व्हाट इज द टाइप ऑफ एपिफाइसिस? एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस. कोरोकॉइड प्रोसेस के टिप पे देयर इज अ लिगामेंट व्हिच इज अटैच्ड टू द एक्रोमियल प्रोसेस. इसका नाम है कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट और इट इज नोन एज कोराकोएक्रोमियल आर्च. योर on the tip of the coracoid process होता है short head of biceps and coracobrachialis. Short head of biceps and coracobrachialis. अभी next अपन आम पढ़ेंगे. So short head of biceps, coracobrachialis, यहाँ पे होता है pectoralis minor, and यहाँ पे होता है coracoclavicular ligament. Coracoclavicular ligament. Just the examiner is going to ask you, examiner पूछेंगे what is attached to the coracoid process. बस you just have to tell. टिप पे होता है coracobrachialis and the short head of biceps. बीच में होता है pectoralis minor. रूट पे होता है coracoclavicular ligament and ऊपर की तरफ होता है coracoacromial ligament. Coracoacromial ligament and यहाँ पे coracohumeral ligament भी होता है. Coracohumeral ligament भी होता है. Is the inflammation of subacromial border a disorder? Subacromial bursa. Subacromial bursa बोल रहे हो ना? No, it is not a disorder. No, it's not a disorder. मैं दिखाता हूँ, स्पेलिंग दिखाता हूँ. DAW Dobberg sign, BURN Dobberg sign. We'll see this. हाँ दिखाता हूँ मैं. Fine, scapula is clear to all of you. Scapula clear है. So जो inferior angle of scapula that comes at T7 rib पे आता है. T7 rib. ये vertebrae है, ये rib है. तो T7 rib पे inferior angle of scapula corresponds to T7 rib. Okay, that's it. That's about the scapula. Fine. So same thing है. Everything is there in the PDF. आप PDF पढ़ सकते हो. हाँ, everything is there in the PDF. Just go through it. Okay. Fine. See, 7th intercostal space, 7th rib. Inferior angle होता है. Fine. बाकी ये सब clear है. Fine. Winging of scapula, winging of scapula is due to paralysis of serratus anterior. Winging of scapula दो मसल की paralysis होता है, serratus anterior and trapezius. एक है Spriglin's deformity, which is the congenital deformity of the scapula. Scapula बहुत ऊपर होता है, high up. वो नीचे नहीं आता, मतलब generally is up, then it goes down. हाँ, तो the scapula does not come to its normal position. That is Spriglin's deformity. बस एक दो clinical याद रखना अपने को. Fine. यहाँ तक clear है बच्चों? Just tell me. यहाँ तक clear है? विक्रम. शोल्डर जॉइंट बहुत डर लग रहा है. अरे बच्चों, वाइवा से डरो मत. Don't be scared about the वाइवा. देखो एक चीज मैं बोलता हूँ आपको. You take exams in the positive sense. Positive way में exams लो. See, portion is vast. Portion बहुत है. And teacher, see, we don't expect everything from the student.
बट बेसिक्स आना चाहिए. व्हाट अ टीचर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट इज बेसिक्स आना चाहिए. फर्स्ट ईयर में बेसिक्स आएगा, यू विल अंडरस्टैंड एनाटॉमी, पूरा एनाटॉमी समझ लोगे. सेकंड ईयर में आप जाओगे, व्हेन यू सी सर्जरीज, योर एनाटॉमी बिकम्स मोर बेटर. अंडरस्टैंड? सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस बच्चों. एग्जाम आल्सो इज अ लर्निंग प्रोसेस. कभी-कभी एग्जाम्स में यू टेंड टू नो न्यू थिंग्स. So it's a learning process. Don't get scared. Be confident in the exams and look in the eyes of the examiner and answer. नीचे देख के आंसर नहीं करना. Okay, look at the examiner and answer. Be confident. You know things. ठीक है? You know things. Okay. T7 vertebrae. T7 क्या? T7 vertebrae पे T7 rib attached होता है ना रे बच्चे. vertebrae पे rib भी होता है ना attached. हाँ. So T7 vertebrae को वो correspond करता है. Yes, yes. T7 vertebrae होगा. Yes. That's fine. That's fine. बोलता हूँ अभी ना, there are still many things to come. You'll understand it. हाँ, चलो फिर स्टार्ट करते हैं ह्यूमरस बच्चों. यहाँ तक क्लियर है? हेलो. लास्ट टाइम थोड़ा सा डिफिकल्टी था, यहाँ तक क्लियर है? सी बिकॉज़ जब नया चीज पढ़ते हो ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा डाउट्स लगेगा, बट व्हेन यू कीप ऑन रिवाइजिंग इट विल बी इजी फॉर यू. डोंट वरी अबाउट दैट. Spriglin's deformity is a congenital deformity. Congenital मतलब right from birth. Birth से होता है ये defect. Spriglin's deformity. The scapula normally inferior angle is at T7 vertebral level पे होता है ना. T7 vertebrae को T7 rib attached होता है. 7th rib attached होता है थोड़ा. हाँ, तो inferior angle corresponds to T7 vertebrae. Spriglin's deformity में scapula ऊपर होता है, ऊपर की तरफ. मतलब T7 vertebrae पे नहीं होता, वो ऊपर की तरफ होता है inferior angle. That is what. कोरोपॉइड प्रोसेस के लिए क्या अटैचमेंट है, फिगर बना के बताइए. ओके, ठीक है, बताता हूँ बच्चे. ओके, I'll show you. देखो कोरोपॉइड प्रोसेस है ना. सी कोरोपॉइड प्रोसेस ऐसे बना है आपने. हाँ, ये कोरोपॉइड प्रोसेस बना है. सो व्हाट इज अटैच्ड हियर टू द टिप? टिप पे होता है कोरैकोब्रेकियालिस. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोरैकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स. शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स. बच्चे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स इज अटैच्ड टू द टिप ऑफ द कोरोपॉइड प्रोसेस. द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स बिगिंस फ्रॉम सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला. समझ में आ रहा है? जो सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल था, ग्लिनॉइड कैविटी, इसके ऊपर सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल. सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से व्हाट बिगिंस इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई. बाइसेप्स मतलब दो हेड्स. सो लॉन्ग हेड सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, शॉर्ट हेड टिप ऑफ द कोरोपॉइड प्रोसेस अलोंग विद कोरैकोब्रेकियालिस. दोनों साथ में आते हैं फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स. शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, कोरैकोब्रेकियालिस, बहुत क्लोज फ्रेंड्स है. Now what is this muscle? This is the pectoralis minor. Pectoralis minor muscle है. यहाँ पे there is a ligament. पीछे क्या है? What is this? Sorry, what is this process here? ये एक मिनट. What is this process बोलो? ये पीछे है acromion process है. ये acromion है. Acromion process. So what is this arch? यहाँ पे ना एक arch होता है. इसका नाम है coracoacromial ligament. Coracoacromial ligament. Coracoid process to acromial process. That's coracoacromial ligament. And यहाँ पे होता है coracoclavicular ligament. Coracoclavicular ligament. ये कोरैकोक्लाविकुलर लिगामेंट के दो पार्ट्स होते हैं. नो आपको पता है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं, कोनॉइड पार्ट, एक ट्रेपेजॉइड पार्ट. कोनॉइड पार्ट इज अटैच्ड टू द कोनॉइड ट्यूबरकल, ट्रेपेजॉइड पार्ट इज अटैच्ड टू द ट्रेपेजॉइड रिज ऑफ क्लाविकल. थोरैसिक वर्टिब्रल एंड रिब्स नंबर सेम होता है. हां बच्चे, थोरैसिक वर्टिब्रल एंड रिब्स का नंबर सेम होता है. यस, T1 थोरैसिक वर्टिब्रल को T1 रिब होता है. हां, T1 रिब. सो ऐसे अटैच होता है. दैट विल सी लेटर, बाद में देख लेंगे वो. आदित्य फाइन. ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है? चलो बोलो फास्ट, कम ऑन टेल मी फास्ट. आज ना एक टाइम मिला अपने को, सो विल रिवाइज एवरीथिंग. अब तक जितना भी हुआ है क्विक रिवीजन करेंगे, फटाफट बोलो. चलो बस फिनिश द ह्यूमरस पे 1 घंटा बचेगा, उसमें अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं पहले से. हां, 3 लेक्चर्स व्हाट वी हैव डन, रिवाइज. चलो फास्ट टेल मी. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट. चलो पूरे थम्स अप इफ इट इज क्लियर. आई गो टू द ह्यूमरस देन. ह्यूमरस स्टार्ट करते हैं. थोरैसिक वर्टिब्रल एंड रिब नंबर सेम होता है आदित्य. यस बच्चे, यस. कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट कहां पे होता है? कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट. अच्छा, कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट यहीं पे होता है. कोरैकोक्लाविकुलर लिगामेंट के साथ कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट. फाइन. ओके, चलो विल स्टार्ट विद ह्यूमरस. अब वेरी इंपॉर्टेंट बोन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोन है ह्यूमरस. हां, रिवीजन हो रहा है ना. चलो विल स्टार्ट. सो ह्यूमरस, सर ह्यूमरस हैज गॉट अ अपर एंड शाफ्ट, लोअर एंड. कैसे स्टार्ट करोगे सर? एक बार वापस बोलता हूं स्टूडेंट्स, दिस बोन्स डू नॉट कम इन थ्योरी. दिस बोन्स डू नॉट कम इन थ्योरी. ये बस प्रैक्टिकल्स में आते हैं, प्रैक्टिकल्स में पूछते हैं. अंडरस्टैंडिंग? प्रैक्टिकल्स में 5 मिनट होता है, 5 मिनट्स फॉर वन स्टूडेंट. 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स. उसमें बोन पूछेंगे 5 मिनट में. यू हैव टू टेल द बोन. अंडरस्टैंड? सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ फास्ट इट इज गोइंग टू बी. So जैसे अपन डिस्कस, सर दिस इज द ह्यूमरस, दिस इज द अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड. अपर एंड शोज द प्रेजेंस ऑफ हेड. ऐसे बात करोगे तो 5 मिनट निकल जाते हैं. सो एग्जामिनर विल टेल यू आइडेंटिफाई द साइड एंड देन ही विल स्टार्ट विद द मसल अटैचमेंट. शो मी द मसल अटैचमेंट. ऐसे जाता है वाइवा. अंडरस्टैंडिंग? सो डोंट मग अप एवरीथिंग फ्रॉम द बुक्स. जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है. ठीक है? ओके, चलो विल स्टार्ट. तो द ह्यूमरस हैज गॉट अ अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड. विल स्टार्ट विद अपर एंड. सो अपर एंड शोज द प्रेजेंस ऑफ हेड. ये हेड देख रहे हो, एंड ये जो हेड है ना, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली. हेड मीडियली होगा ना, जैसे ग्लिनॉइड कैविटी था, ग्लिनॉइड कैविटी इज डायरेक्टेड लैटरली. ग्लिनॉइड कैविटी लैटरल साइड पे होगा. हेड ऑफ द ह्यूमरस विल बी डायरेक्टेड मीडियली होगा. सो द हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनॉइड कैविटी. नेम ऑफ द जॉइंट? shoulder joint. Type of joint? Ball and socket type of synovial joint. Ball and socket type of synovial joint. ठीक है? So head of the humerus is directed medially and upwards. Medially and upwards. Fine. The lower end shows the presence of epicondyles. इसको बोलते हैं epicondyle. यहाँ पे लगता है ना, यहाँ पे लगता है ये. हाँ, epicondyle. So lower end पे epicondyles है, upper end पे head है, lower end पे epicondyles है. The intertubercular sulcus is forwards. Bicipital groove और intertubercular sulcus आगे होता है. So अगर मैं ये ऐसे पकड़ूं, right side पे पकड़ूं, so head वो side जा रहा है ना, head वो side जा रहा है. So this is the humerus of my left side. कैसे? The head is directed medially, upper end, lower end shows the presence of epicondyles. The bicipital groove is forwards. ऐसे तो नहीं पकड़ोगे, ऐसे नहीं पकड़ोगे, ये गलत है. Bicipital groove पीछे गया, so bicipital groove has to be in front. Fine. So this is the humerus of my left side. My left side. Okay, I'll start. ये हेड है, हेड आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनॉइड कैविटी. नेम ऑफ द जॉइंट? शोल्डर जॉइंट. टाइप ऑफ जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. फाइन. फिर आते हैं नेक की तरफ. नेक. अब 3 नेक होते हैं. 3 नेक्स फॉर द ह्यूमरस. हां, 3 नेक होते हैं ह्यूमरस के. नंबर 1 इज एनाटॉमिकल नेक. एनाटॉमिकल नेक. दूसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल नेक. मॉर्फोलॉजिकल नेक क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल नेक इज द जंक्शन ऑफ एपिफाइसिस एंड डायफिसिस. वो जो एपिफिशियल प्लेट होता है ना, एपिफिशियल प्लेट जहां पे होता है बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफिसिस, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल नेक. सो मॉर्फोलॉजिकल नेक इज द जंक्शन बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफिसिस. सिंपल. एंड द थर्ड वन इज सर्जिकल नेक. सर्जिकल नेक. सो 3 नेक है अपने पास.
एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, सर्जिकल नेक। तो मॉर्फोलॉजिकल नेक क्या होता है? इट्स द जंक्शन ऑफ एपिफिसिस एंड डायफिसिस, जहां पे एपिफिशियल प्लेट था, नाउ दैट डिसअपीयर्स, नो, वो चला गया, तो मॉर्फोलॉजिकल नेक दिखेगा नहीं, वी डोंट सी द मॉर्फोलॉजिकल नेक, राइट? व्हाट इज दिस ब्यूटीफुल नेक दैट यू लुकिंग एट? ये दिख रहा है आपको? हां, ये दिख रहा, यू कैन सी दिस, वन मोमेंट, आई जस्ट पॉइंट दिस, ये देखो, ये जो लाइन दिख रहा है, ये वाला, हां, दिख रहा है ये, हां, दिस इज द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, ये है एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। सो एनाटॉमिकल नेक इज दिस, मॉर्फोलॉजिकल नेक इज द जंक्शन ऑफ एपिफिसिस एंड डायफिसिस, एंड तीसरा नेक होता है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक सेपरेट्स द हेड फ्रॉम द शाफ्ट, हेड को शाफ्ट से जो सेपरेट करता है ना, दैट नेक इज सर्जिकल नेक, इट इज 0.5 मिलीमीटर्स बिलो द मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक के नीचे होता है सर्जिकल नेक, मतलब ये कौन है? दिस इज द एनाटॉमिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक के नीचे होगा मॉर्फोलॉजिकल नेक, उसके नीचे होगा सर्जिकल नेक। फाइन, क्लियर है? थ्योरी में नहीं आता, वही है कंफ्यूजन बच्चा। अरे क्या हुआ पटेल, अफान, क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चे? ये फर्स्ट लेक्चर है क्या? पटेल, इस्माइल, कुछ डाउट है? दिस इज फर्स्ट लेक्चर, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चे, दिस विल टेक टाइम, हां, थोड़ा सा टाइम लगता है, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा, नया है सब। फाइन है। सो हेड क्लियर है? नेक तीन होते हैं, एक होता है एनाटॉमिकल नेक, दूसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल नेक, तीसरा होता है सर्जिकल नेक। सो एनाटॉमिकल नेक तो ये क्लियरली डिफाइंड है, देखो ये बहुत अच्छे से जो दिख रहा है ना, ये है एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। मॉर्फोलॉजिकल नेक क्या होता है? इट्स द जंक्शन ऑफ एपिफिसिस एंड डायफिसिस, एपिफिसिस एंड डायफिसिस का जंक्शन होता है, दैट्स मॉर्फोलॉजिकल नेक, एंड उसके नीचे होता है सर्जिकल नेक, सर्जिकल नेक, उसके नीचे होता है सर्जिकल नेक, 0.5 सेंटीमीटर्स, हां 0.5 सेंटीमीटर्स, हां 0.5 सेंटीमीटर्स है, नॉट मिलीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर्स। फाइन। अरे मराठी मीडियम से है मुंबई से हो क्या? मुंबई से हो? ओके फाइन, थोड़ा टाइम लगता है उसको टू अंडरस्टैंड। 0.5 सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर्स नहीं, 0.5 सेंटीमीटर्स बिलो द मॉर्फोलॉजिकल नेक, सर्जिकल नेक। अच्छा ये क्लियर है? अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, लुक, ये है हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये है हेड ऑफ द ह्यूमरस, दैट्स द नेक एंड दैट्स द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। फाइन, ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है। अब व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस एंड हु इज दिस एंड हु इज दिस? अब ये सब पता है आपको? चलो बच्चों बोलो, ये कौन है? ये व्हाट इज दिस? ये है अपना लेसर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल। व्हाट इज दिस? ये है अपना ग्रेटर ट्यूबरकल। पहले से अगर अटेंड किया लेक्चर्स यू विल अंडरस्टैंड, पहले से अगर अटेंड किया है ना तो यू विल अंडरस्टैंड। ये क्या है? दिस इज द लैटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, दिस इज द लैटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। ये क्या होगा? मीडियल लिप होगा, नॉट लैटरल, ये होगा मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, ठीक है? ये क्या होगा? दिस इज द लैटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। चलो बच्चों अभी मसल्स बोलो, जल्दी जल्दी टेल मी द मसल्स। दिस इज नंबर 1 लेसर ट्यूबरकल, दिस इज नंबर 2 ग्रेटर ट्यूबरकल, मीडियल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव, लैटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव। चलो मसल्स बोलो, कम ऑन स्टूडेंट्स, कम ऑन, इफ यू कैन टेल मी व्हाट इज अटैच्ड टू द लेसर ट्यूबरकल, कम ऑन, लेसर ट्यूबरकल, आपको पता है ये लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, व्हाट इज अटैच्ड? हां क्या लिखा है? मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। हाँ मीडियल लिप, क्या कौन सा मीडियल लिप बोला बच्चे? ये मीडियल लिप है, ये लैटरल लिप, हाँ हाँ यस 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 कुंतल, यस वेरी गुड। चलो बच्चों व्हाट इज अटैच्ड टू द लेसर ट्यूबरकल? लेसर ट्यूबरकल पे क्या अटैच्ड है? कम ऑन स्टूडेंट्स, कम ऑन, अभी बोलो, चलो रिवाइज फास्ट, रिवाइज। लेसर ट्यूबरकल पे क्या अटैच्ड है? सबस्कैपुलरिस, सबस्कैपुलरिस का ओरिजिन बोलो, सबस्कैपुलरिस का ओरिजिन कहां पे था? ओके ये ऐसे है, दिस इज लाइक दिस, सबस्कैपुलरिस का ओरिजिन इज फ्रॉम द सबस्कैपुलर फोसा, ये सबस्कैपुलर फोसा है, सबस्कैपुलरिस ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इट इज अटैच्ड टू द लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। समझ में आ रहा है? अब पूरा अंडरस्टैंड कर लो, व्हाट वी हैव सीन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबस्कैपुलरिस का ओरिजिन इज फ्रॉम द सबस्कैपुलर फोसा ऑफ स्कैपुला, ये ऐसे जाएगा, ये इंसर्ट होगा ऑन द लेसर ट्यूबरकल। When this muscle contracts, look, what is it doing? ये क्या कर रहा है? जब ये muscle contract करेगा, what is it doing? Look at the humerus. देखो, 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 देखो. What is this? What is this action? बोलो बच्चों, come on, answer now. हाँ, very good. वो medial two-thirds वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है. You can just say subscapular fossa, बस उतना बोलो बस है. हाँ, वो medial two-thirds lateral नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा. What is the action of subscapularis? Origin is from the subscapular fossa. Insertion is on the lesser tubercle. ये contract किया. You. What's that? Medial rotation at the shoulder joint. Very good, बच्चा. Very good. Nerve supply of subscapularis. If you can tell me this, nerve supply of subscapularis. Come on. थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनते हैं ना. Nerve supply of subscapularis बोल सकते हो? याद है? Nerve supply of subscapularis, upper and lower subscapular nerve. Upper and lower subscapular nerve. कहां से आता है? That I'll tell you later. वो बाद में बोलूंगा. बस अभी subscapularis muscle clear है ना बच्चा? Subscapularis muscle clear. Arises from here. ये ऐसे जाएगा on the lesser tubercle. ये ऐसे करेगा. ऐसे. ये क्या joint है? What is this joint? What is this joint? Shoulder joint. ये क्या joint है? Shoulder joint. Now you tell me, where is the subscapularis muscle with respect to the shoulder joint? Where is the subscapularis muscle with respect to the shoulder joint? आगे, anterior to the shoulder joint, anterior. Shoulder joint is an LQ. Shoulder joint बहुत important सवाल है. It's a very important LQ. So अपन लिखेंगे relations of the shoulder joint. So उसमें the anterior relation is going to be subscapularis. Fine, perfect, very good. हाँ, posterior cord, very good. सबने पढ़ लिया लगता है. It's a branch of posterior cord. Very good. चलो, now you tell me who's this? Greater tubercle. ये कौन है? Greater tubercle. Muscle attached, supraspinatus, infraspinatus, teres minor. SIT मतलब आगे से पीछे जाना है. SIT. S कौन है? Supraspinatus. Infraspinatus पीछे आइए, teres minor. Supraspinatus, infraspinatus and teres minor. Very good. अब supraspinatus समझो बच्चा, supraspinatus समझ लो. Supraspinatus का ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग पीछे से देख रहे हो? You're looking from back. सुप्रास्कैपुलर फोसा यहां से स्टार्ट होगा, सुप्रास्पाइनेटस, लुक सुप्रास्पाइनेटस ऐसे जाएगा, ऐसे दिख रहा है ये, सुप्रास्पाइनेटस ऐसे जाएगा, ऐसे एंड इज इंसर्टेड ऑन ग्रेटर ट्यूबरकल। समझ में आ रहा है? एम आई एबल टू शो यू दिस? कैसे दिखाऊं? सुप्रास्पाइनेटस यहां से स्टार्ट होगा, यहां से फ्रॉम द सुप्रास्कैपुलर फोसा, ये ऐसे जाएगा एंड गेट इंसर्टेड ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल, ऐसे जाएगा, इट इज इंसर्टेड ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। वेयर इज द सुप्रास्पाइनेटस विद रिस्पेक्ट टू द शोल्डर जॉइंट? सुपीरियरली। सुप्रास्पाइनेटस, ये सुप्रास्पाइनेटस है, ये शोल्डर जॉइंट है, इट इज सुपीरियर, ऐसे जाएगा, इंसर्ट्स ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। अब बोलो बच्चों, व्हेन दिस सुप्रास्पाइनेटस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाट विल इट डू? ये कहता है ऐसे, ये what's this? Abduction. Look at this. It does this. What's this? Abduction at the shoulder joint. So supraspinatus का action क्या है? Abduction at the shoulder joint. Origin of supraspinatus from the suprascapular fossa. Insertion is on the greater tubercle of humerus. ऐसे. What does it do? It does abduction. but छोटा सा मसल है, बेचारा छोटा सा मसल है, वो बस इतना ही करता है abduction. Only this much. 0 to 15 degrees of abduction. 0 to 15 degrees of abduction कौन करेगा? Supraspinatus. छोटू सा मसल है, छोटू सा.
मैं ज्यादा नहीं कर सकता, आई कैन टेक ओनली दिस मच, 0 to 15 डिग्रीज। 0 to 15 आने के बाद समवन इज वेटिंग, समवन इज वेटिंग, वो बोलता है तू बस 15 डिग्रीज तक लेके आ बॉस, उसके बाद आई विल टेक इट फ्रॉम 15 to 90 डिग्रीज। कौन है? Who's that? Who's that? अरे प्रकाश, जस्ट वेट, जीएमसी चंडीगढ़ ना, आई विल डिस्कस लेटर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर, डोंट कीप ऑन आस्किंग थिंग्स। ओके, 0 to 15 डिग्रीज, 0 to 15 डिग्रीज इज सुप्रास्पाइनेटस। एक बार 15 पे आ गया तो डेल्टॉइड इज वेटिंग, द एक्रोमियल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड अब ये खींचेंगे 15 to 90 डिग्रीज। 15 to 90 डिग्रीज ऑफ एब्डक्शन इज डन बाय एक्रोमियल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, एक्रोमियल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। वेरी गुड, वेरी गुड। अब लेटेस्ट एडिशन आप बीडीसी देखोगे तो 0 to 90 डिग्रीज दिया है डेल्टॉइड, 0 to 90 डिग्रीज सुप्रास्पाइनेटस डेल्टॉइड दिया, बट वी रिमेंबर आवर ओल्ड कांसेप्ट 0 to 15 सुप्रास्पाइनेटस, 15 to 90 इज एक्रोमियल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, एंड 90 एंड अबव क्या बोलते हैं इसको? 90 एंड अबव, 90 and above, what is this? इसको क्या बोलते हो? What is this known as? Overhead abduction. Overhead abduction. And scapula का क्या होता है? Lateral rotation of scapula. Lateral rotation of scapula. And this overhead abduction of scapula is done by, answer, overhead abduction of scapula is done by serratus anterior and trapezius. Superb. Very good, very good. Overhead abduction is done by serratus anterior and trapezius. समझ में आ रहा है बच्चों? So 0 to 15 degrees supraspinatus, 15 to 90 acromial fibers of deltoid, and 90 and above we call this as overhead abduction. ये कौन करता है? Serratus anterior and trapezius. बहुत ज्यादा specific distinction मिलना है. Which fibers of trapezius? Lower fibers of trapezius. बराबर है? Lower fibers of trapezius, to be very specific, because upper fibers of trapezius क्या कर रहे थे? Sorry sir, I don't know. Sorry sir, I'm not able to recollect. What is that? Shrugging of shoulders. जो middle fibers of trapezius क्या कर रहे थे? Retraction of scapula. And the lower fibers of trapezius, what do? They do overhead abduction along with serratus anterior. Yes. नहीं, वो 0 to 15 आता है ना, उतना एक्शन है सुप्रास्पाइनेटस का, बस उतना एक्शन आने के बाद it will remain in that stage only. Contracted stage में रहेगा 0 to 15 के बाद। ठीक है भाविका, ठीक है भाविका, हाँ वेरी गुड। देखो everything gets covered. See, ऐसे समझना चाहिए, you should be able to understand like this. इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगा बच्चों, थिंग्स आर न्यू फॉर यू एंड एवरीथिंग इज न्यू, ट्रेपेजियस नया है, लैटिस डोर्सा नया है, डेल्टॉइड नया है, बट कीप ऑन रिवाइजिंग, फिर वो ऐसे रिवीजन होता है, समझ गए? सी नाउ वी आर रिवाइजिंग एवरीथिंग, है ना? दैट्स इट, परफेक्ट है। ओके ओके, सो देखो देखो देखो, हु इज इन फ्रंट? ये कौन है? सबस्कैपुलरिस। ये कौन है? सुप्रास्पाइनेटस। अब जब ये सुप्रास्पाइनेटस आता है ना, ऐसे सुप्रास्पाइनेटस ऐसे आएगा, हाँ देखो ऐसे आता है, बिटवीन दिस ये क्या आर्च है? व्हाट इज दिस आर्च? ये है कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, इसके नीचे से आता है ये सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस कम्स बिलो द कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, विल सी दैट लेटर, फाइन। नाउ कम बिहाइंड। ओके, व्हाट इज दिस मसल? पीछे से देख रहे हो बच्चों? सॉरी एक मिनट, आई जस्ट चेंज द स्लाइड। हाँ अभी बोलो बच्चों, ये क्या मसल है? व्हाट इज दिस मसल? Below the spine is infraspinatus, and infraspinatus ऐसे जाएगा ऐसे to the greater tubercle, infraspinatus ऐसे जाएगा to the greater tubercle, and ये कौन सा एस्पेक्ट है? डॉर्सल एस्पेक्ट। What is this border? Lateral border। ये medial border है, medial border पे levator scapulae, rhomboides minor, rhomboides major, lateral border पे what is this muscle? That's the teres minor and teres major, teres minor and teres major। So teres minor ऐसे जाएगा ऐसे, so infraspinatus ऐसे गया, उसके नीचे नीचे जाएगा teres minor। Understanding? So if you see the shoulder joint, which is the muscle in front here, subscapularis, ऊपर कौन है? Supraspinatus, पीछे कौन है? Infraspinatus and teres minor, infraspinatus and teres minor together, ये जो चार muscles होते हैं, this four muscles forms what is known as the rotator cuff, rotator cuff। teres minor है बच्चे, rotator cuff। ये rotator cuff कौन बनाता है? चार muscles, four muscles forms the rotator cuff। आगे आगे subscapularis, ऊपर ऊपर supraspinatus, पीछे पीछे infraspinatus and teres minor। This four muscles are going to surround the shoulder joint, ये shoulder joint को surround करते हैं, like अपन शर्ट पहनते हैं, शर्ट, you put this cuff, collar and cuff, cuff and collar बोलते हैं, तो ये cuff है ना शर्ट का, जहाँ पे अपन ये कफ लिंक्स होते हैं, राइट? सो इट सराउंड्स द रिस्ट। वैसे ही दिस मसल्स आर गोइंग टू सराउंड द शोल्डर जॉइंट, इसे हम बोलते हैं रोटेटर कफ। समझ में आया बच्चे? रोटेटर कफ, रोटेटर कफ चार मसल से बनता है, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर। फाइन, परफेक्ट परफेक्ट, समझ में आया? सो व्हाट इज दिस मसल? एक बार वापस देख लो। हां, व्हाट इज दिस मसल? दिस मसल इज इंफ्रास्पाइनेटस, ये ऐसे गया, एंड टेरेस माइनर ऐसे गया, टेरेस माइनर ऐसे गया। बच्चों बच्चों बच्चों, टेल मी द नर्व सप्लाई ऑफ टेरेस माइनर, नर्व सप्लाई ऑफ टेरेस माइनर। प्रोनेटर टीरीज नहीं रे बच्चे, पृथ्वीराज, प्रोनेटर टीरीज नहीं, प्रोनेटर टीरीज अलग है। टेल मी द नर्व सप्लाई ऑफ टेरेस माइनर, एनीवन? नर्व सप्लाई ऑफ टेरेस माइनर, नर्व सप्लाई ऑफ टेरेस माइनर, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। नर्व सप्लाई ऑफ टेरेस माइनर, एनीवन एनीवन एनीवन? क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे? यस एनीवन? नर्व सप्लाई ऑफ टेरेस माइनर इज व्हाट? Axillary nerve, very good. Axillary nerve. Nerve supply of teres minor is axillary nerve. वैसे axillary nerve दो मसल सप्लाई करती है, deltoid and teres minor, right? Axillary nerve supplies two muscles, एक है deltoid, दूसरा है teres minor, and it gives a cutaneous branch. नाम the upper lateral cutaneous nerve of arm, upper lateral cutaneous nerve of arm, and ये axillary nerve damage होती है, two muscles are paralyzed, deltoid paralyzed हो गया, teres minor paralyzed हो गया, plus there's a loss of sensations here. यहाँ पे sensory loss होगा ना, skin को supply करती है, so there's a loss of sensations here. Name regimen batch sign, regimen batch sign। देखो सब रिवाइज हो रहा है ना बच्चों, रिवाइज हो रहा है सब, regimen batch sign। फाइन है, वेरी गुड रूपंकर, वेरी गुड, रेजिमेंट बैक साइन। हाँ, तो ऐसे याद रखना है बच्चों आपको। हे लुक व्हाट वाज द एक्शन ऑफ सबस्कैपुलरिस? सबस्कैपुलरिस का एक्शन क्या था बच्चा? यो मीडियल रोटेशन एट द शोल्डर जॉइंट। अब सॉरी ये क्या था? इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर। एक मिनट, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर पीछे है ना, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर पीछे है। व्हाट डू? दे डू दिस लैटरल रोटेशन। सो इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर का एक्शन होगा लैटरल रोटेशन एट द शोल्डर जॉइंट, हिंदी मीडियम में पीडब्ल्यू के साथ बात नहीं हुआ? अरे हिंदी मीडियम में भी बोल रहा हूं ना प्रिया, हिंदी में भी बोल रहा हूं ना मैं, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बोल रहा हूं ना, इंग्लिश बोल रहा हूं ना प्रिया। अटेंड द लेक्चर्स रेगुलर अटेंड करो तो समझ में आ जाएगा बच्चों। ऑल ऑफ यू आई एम टेलिंग, लेक्चर्स का सीक्वेंस आई पुट इन सच अ वे दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अभी इतना हो गया ना मेरा, तो आई स्टार्टेड विद बोन्स, बिकॉज़ इतना तो पता है आपको, मसल्स आपको पता है, देन बोन्स साथ में हो जाता है। इफ यू नो द मसल्स यू नो द बोन्स, इफ यू नो द बोन्स यू नो द मसल्स, इट्स लाइक दैट। ओके फाइन। अब देखो नाउ, अब देखो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, नाउ यू टेल मी व्हाट इज दिस मसल हियर? यहां पे कौन सा मसल था? डॉर्सल एस्पेक्ट, लैटरल बॉटम,
यहाँ पे टेरेस माइनर था, ये कौन है? टेरेस मेजर। बच्चों ये टेरेस मेजर है। अब टेरेस मेजर का इंसर्शन याद है? टेरेस मेजर पीछे है, बट दिस टेरेस मेजर आगे जाएगा, आगे आगे आगे, एंड इट गेट्स इंसर्टेड ऑन द मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। मतलब ये मसल यहां से अराइज होगा स्कैपुला से, एंड ये मसल आगे जाएगा, इट इज इंसर्टेड ऑन द मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। वो ना नोट्स है ना, मतलब पीडब्ल्यू के नोट्स में वो गलत दिया है ना, पीडब्ल्यू के नोट्स में वो गलत टाइप हुआ है। टेरेस मेजर इज इंसर्टेड ऑन द मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, ये याद रखना। वहां पे लिखा फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, हाँ मिस्टेक है, ये याद रखना। सो टेरेस मेजर देखो बच्चों, एक्शन मतलब मसल के डायरेक्शन समझो, उसका एक्शन समझ में आ जाएगा। सो टेरेस मेजर का ओरिजिन इज फ्रॉम डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला, लैटरल बॉर्डर। अब ये टेरेस मेजर आगे जाएगा, आगे आगे, अब आगे से देखोगे ये ऐसे आ गया, एंड इट इज इंसर्टेड ऑन द मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, मीडियल लिप। वैसे हु बिगिंस फ्रॉम दिस इंफीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल से कौन सा मसल आता है? लैटिसिमस डॉर्सी। लैटिसिमस डॉर्सी भी साथ में जाता है, इट गोस टुगेदर विद टेरेस मेजर, एंड लैटिसिमस डॉर्सी इज इंसर्टेड इन द फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, लैटिसिमस डॉर्सी। समझ में आ रहा है? सो देखो टेरेस मेजर साथ में जाता है, बट वेट आई एम आल्सो कमिंग, मैं भी आता है, रुको रुको, कौन है? लैटिसिमस डॉर्सी। सो टेरेस मेजर ऐसे जा रहा है, लैटिसिमस डॉर्सी बिगिंस फ्रॉम योर इंफीरियर एंगल, याद है? So both these muscles go together and they go like this. ये आगे जाएंगे, आगे जो teres major है that inserts on the medial lip, जो latissimus dorsi है that goes in the floor of the biceps groove, floor में जाएगा। So देखो बच्चों, just try to understand, muscle ऐसे आ रहा है, ऐसे, हाँ पीछे से आ रहा है, it is coming from back side, आगे आ रहा है। So when this muscle contracts, it takes the arm backwards, ये arm को पीछे लेगा, what's this? Extension। teres major and latissimus dorsi साथ में जा रहे हैं, ये contract करेंगे, ये arm को पीछे लेंगे, this is extension at the shoulder joint। They will take the arm towards the body, adduction plus they will also turn the humerus inwards, अंदर की तरफ घुमाते हैं, अंदर की तरफ ऐसे जा रहे हैं, पीछे से they turn the arm inwards, that's medial rotation at the shoulder joint। so action of teres major and latissimus dorsi दोनों का सेम एक्शन है, दोनों का एक्शन सेम है, ये ऐसे जा रहे हैं, so they extend, they adduct and they medially rotate the shoulder joint, extension, adduction and medial rotation at the shoulder joint। पटेल you'll understand, ये फर्स्ट लेक्चर है ना पटेल इस्माइल, हिंदी में बोल रहा हूं ना, हिंदी तो समझ में आ रही है ना, हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, मराठी नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड, आई कैन टॉक इन मराठी बट सबको नहीं समझ में आता ना, हिंदी इज जनरल लैंग्वेज, यू हैव टू नो दैट। किधर गया वैसे पेन का, ओके सो व्हाट इज एक्शन ऑफ टेरेस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्सी। टेरेस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्सी, टेरेस मेजर का इंसर्शन कहां पे बचा? मीडियल लिप एंड लैटिसिमस डॉर्सी का फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। हां ये है मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, ये फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। एक्शन ऑफ टेरेस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्सी दोनों का कॉमन एक्शन है एडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड एक्सटेंशन at shoulder joint, at the shoulder joint। अरे इस्माइल 11th एंड 12th तो किया है ना, 11th एंड 12th, हाँ इंग्लिश वर्ड्स तो इंग्लिश ही होंगे ना, टर्म्स चेंज नहीं होंगे, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, मराठी में बोलो, टर्म्स तो सेम ही रहेंगे, ग्रेटर ट्यूबरकल को ग्रेटर ट्यूबरकल ही बोलेंगे, वो तो चेंज नहीं होगा। अजून काय पाहिजे? ठीक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो, मेहनत करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है फाइन बच्चों, क्लियर है, ये समझ में आ गया टेरेस मेजर लैटिसिमस डॉर्सी। ये एक बच्चे ने मेरे को बताया कि वो नोट्स में गलत टाइप हुआ है, हाँ तो इफ यू कम अक्रॉस एनीथिंग लाइक दिस प्लीज टेल मी। हाँ वो पीडब्ल्यू के नोट्स में दिया है टेरेस मेजर इज इंसर्टेड इन द फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, नहीं टेरेस मेजर इज इंसर्टेड ऑन द मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव एंड लैटिसिमस डॉर्सी जो होता है वो फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव में होता है। एक्शन क्लियर है बच्चों, एक्शन क्लियर? हाँ पृथ्वीराज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स टेंडन एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है वो देखते हैं, फाइन है बच्चों, इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, सबस्कैपुलरिस पे आई मीन लेसर ट्यूबरकल पे सबस्कैपुलरिस मसल, ग्रेटर ट्यूबरकल पे तीन मसल, सुप्रास्पाइनेटिस, इंफ्रास्पाइनेटिस, टेरेस माइनर, ये चारों मसल्स दे टुगेदर फॉर्म्स व्हाट? रोटेटर कफ। मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव पे क्या होता है? टेरेस मेजर, लैटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव पे होता है पेक्टोरलिस मेजर। फाइन है बच्चों, यहां तक क्लियर है तो पूरा थम्स अप, अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछो। बस एक बाइसेप्टल ग्रूव बोलता हूं, बाइसेप्टल ग्रूव आई टेल यू द बाइसेप्टल ग्रूव, हैव अ लुक एट दिस। ओके दैट्स आवर स्कैपुला, दैट्स अ कोरोकोइड प्रोसेस, दैट्स आवर ह्यूमरस, that's the lesser tubercle, that's the greater tubercle, that's the medial lip, lateral lip, and ये होगा अपना bicepital groove। bicepital groove के अंदर कौन होता है? latissimus dorsi, latissimus dorsi, okay bicepital groove के अंदर है latissimus dorsi। now see बच्चों, you have to sleep, हाँ you have to sleep, हो जाएगा एक मिनट, अभी आपको सोना है, when you sleep तो बेड पे सोते हो, सपोज जमीन है, जमीन तो गद्दा है, you put the गद्दा on the floor and फिर उस पे बेडशीट डालोगे अच्छे से, फिर सोगे ना, हाँ समझ में आ रहा है? एक गद्दा है and you have to sleep, तो पहले गद्दा बिछाओगे, you'll put the bed, उसके ऊपर अच्छी बेडशीट डालोगे and then you'll sleep। वैसे ही look what is this muscle? ये एक मसल है। What is this tubercle? Supraglenoid tubercle। ये tubercle का नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है supraglenoid tubercle। मसल कौन है? वो arises from the supraglenoid tubercle। That's the long head of biceps। long head of biceps brachii, हाँ long head of biceps। अब long head of biceps है ना, it will go like this। ये जाएगा bicepital groove के अंदर से, So bed कौन है? Bed latissimus dorsi। So latissimus dorsi covers the floor, वो bed बन गया। And who's lying on the bed? The long head of biceps brachii। समझ में आ रहा है? The long head of biceps brachii। bicepital aponeurosis नहीं है बच्चे, पृथ्वीराज आई एम टेलिंग, ओके bicepital aponeurosis सीधा नहीं आता है, bicepital aponeurosis is in the cubital fossa, so just sit and listen, understand? Prithviraj, if you have read it, just wait, let me finish it। bicepital aponeurosis cubital fossa में आता है, इधर नहीं आता, fine, that is wrong what you're saying, so just listen, let me finish first। so long head of biceps begins from supraglenoid tubercle। अब ये long head of biceps bicepital groove के अंदर से जाएगा, तो देखो बच्चों, अगर ये bicepital groove है, हाँ ये bicepital groove है, ये medial lip आ गया, ये lateral lip आ गया, हाँ ये bicepital groove है, तो पहले तो अपन इसमें गद्दा बिछाते हैं, we put a bed here, ये bed कौन है? latissimus dorsi। ये bed कौन बन गया? latissimus dorsi। and who's this? that's the long head of biceps brachii, long head of biceps। अब देखो एक चीज है,
मैं ना सब एक साथ नहीं बोलता हूं, अंडरस्टैंड, धीरे धीरे बोलता हूं, नहीं तो यू नॉट अंडरस्टैंड, तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। ओके, नाउ लुक एट दिस, ये ना व्हाट इज दिस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो ये है अपना बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। एक मिनट, एक मिनट, ओके ओके, ये है अपना बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। सो ये जो बाइसेप्स ब्रेका है, बाइसेप्स ब्रेका है, इट बिगिंस फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, यहां से अराइज होता है, ये कैप्सूल के अंदर है, इट इज इनसाइड द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेका। नाउ दिस लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेका हैज टू कम आउटसाइड द कैप्सूल, ये कैप्सूल से बाहर निकलती है। एंड बच्चों, यू नो हु इज लाइनिंग द कैप्सूल फ्रॉम इनसाइड, कैप्सूल को अंदर से क्या होता है, व्हाट इज लाइनिंग द कैप्सूल फ्रॉम इनसाइड। एक मिनट, आई जस्ट ड्रॉ दिस फॉर यू, मैं ड्रॉ करता हूं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज दिस, दिस इज द कैप्सूल of the shoulder joint. Fine. And you tell me who lines the capsule from inside you. What's this? What's this? कौन है ये? Blue, blue, blue. Answer. What's this? हाँ बच्चे, फ्रिक्शन होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये ब्लू कौन है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना जो कैप्सूल को लाइन करेगा। तो जब बाइसेप्स है ना कैप्सूल से बाहर निकलता है, बाइसेप्स pierces the capsule and gets out, तो फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन। तो प्रिवेंट दिस फ्रिक्शन कुछ तो चाहिए ना। साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलता है वेट, यू डोंट वरी, मैं आता है तेरे साथ, आई कम विद यू। सो हु कम्स विद द बाइसेप्स ब्रेका? द साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन भी साथ में आ जाता है ऐसे, तो वो फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता। सो द कंटेंट्स ऑफ the bicipital group, number 1 latissimus dorsi, number 2 the long head of biceps brachii with the synovial sheath of shoulder joint, with the synovial sheath of shoulder joint फाइन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फ्रिक्शन होगा तो साइनोवियल मेम्ब्रेन भी आ जाता है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जब बाहर आता है तो इट फॉर्म्स अ शीथ, वो शीथ बनाता है, एनक्लोज करता है, तो वो शीथ बनता है। ओके फाइन, समझा इतना? आर यू एबल टू फॉलो दिस? नाउ यू टेल मी, देयर आर टू आर्टरीज, ये लुक, ये ह्यूमरस है अपना, देयर आर टू आर्टरीज व्हिच वाइंड्स अराउंड द ह्यूमरस, एक आगे से वाइंड करता है, एक पीछे से वाइंड करता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर दीस टू आर्टरीज? ये आर्टरीज कौन है? हां, which are the arteries which winds around the humerus? कोई भी आर्टरी जब वाइंड करती है, anything which winds is known as circumflex. Circumflex मतलब वो, circumflex मतलब it winds around, so that is circumflex. Winds around what? Humerus. Circumflex humeral, एक आगे से वाइंड करेगा, मतलब ना एक आगे से वाइंड करेगा ह्यूमरस को, इसका नाम anterior circumflex humeral। anterior मतलब ये बीच में ह्यूमरस है, anterior मतलब आगे से वाइंडिंग अराउंड द ह्यूमरस, anterior circumflex humeral। दूसरा पीछे से जाएगा, पीछे से posterior circumflex humeral। ये किसके ब्रांचेस है? डेफिनेटली लेटर, हां, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। अब जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल है ना, इट गिव्स अ ब्रांच, ये एक ब्रांच देती है, द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी गिव्स अ ब्रांच एंड दिस ब्रांच इज गोइंग अप इन द बाइसेप्टल ग्रूव। ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, दैट्स इट, असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। समझ में आया ना? एंटीरियर आगे से वाइंड करता है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल उसका एक ब्रांच है जो ऊपर जा रहा है, व्हिच इज गोइंग अप, असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, दैट्स इट, बी वेरी क्लियर। Contents of bicipital group: 1 latissimus dorsi, 2 the long head of biceps with the synovial sheath of shoulder joint, number 3 the ascending branch of anterior circumflex humeral artery। Perfect. Oh, that should be clear। कुछ डाउट है तो बोलो, कुछ डाउट है तो बोलो। तो आज क्लियर है ना? बाइसेप्टल अपोनेरोसिस क्यूबाइडल फोसा में आता है बच्चे, क्यूबाइडल फोसा में आता है। अभी बोलो, कुछ मिस हुआ है तो बोलो, ठीक है बच्चों। सो व्हाट आर वी स्टडीइंग? ह्यूमरस। देखो ह्यूमरस के साथ ना ऐसे रिवीजन होता है सब, and this is how you correlate anatomy, मतलब अपना मसल्स हो गया, देखो सबस्कैपुलर हो गया, सुप्रास्पाइनस हो गया, इंफ्रास्पाइनस, टेरिस माइनर भी हो गया, टेरिस मेजर भी डिस्कस किया, वी डिस्कस द latissimus dorsi also we discuss the trapezius and the serratus anterior। that's how you correlate, ठीक है, फाइन है, परफेक्ट है। चलो इतना क्लियर है ना, समझ में आ गया सब? कमिंग बैक, सो दैट्स द हेड, दैट्स द नेक, ये जो दिख रहा है वो एनाटॉमिकल नेक, फिर आता है मॉर्फोलॉजिकल नेक एंड हाफ अ सेंटीमीटर बिलो इट इज सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। जो कैप्सूल होता है ना शोल्डर जॉइंट का, कैप्सूल विल बी अटैच्ड टू द ह्यूमरस एंड दूसरा एंड विल बी अटैच्ड टू द स्कैपुला, ग्लिनॉइड कैविटी पे अटैच होगा एंड ह्यूमरस पे अटैच होगा, हां, कैप्सूल, दैट आई टेल यू लेटर। थ्री मेजर आर्टरीज ऑफ द ह्यूमरस, थ्री मेजर आर्टरीज ऑफ द ह्यूमरस। अरे बच्चे वो बाद में समझेगा, डोंट गो इनटू दैट, जितना मैं बोल रहा हूं ना अभी फिलहाल उतना याद रखो। सी आई कैन टेल यू एवरीथिंग, मैं पूरा बोल सकता हूं बट वो नहीं समझेगा। अभी यू जस्ट रिमेंबर टू आर्टरीज जो वाइंड करती है ह्यूमरस को, एक आगे से एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, एक पीछे से पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, बस इतना याद रखो। धीरे धीरे देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सब एक साथ बोलूंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आई कैन टेल एवरीथिंग, एनाटॉमी इज देयर इन द ग्रे मैटर। ओके, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेका कहां से बाहर आता है? शोल्डर जॉइंट से, ऊपर से बच्चे, ऊपर से आता है। यहाँ पे ना कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल, तो कैप्सूल को पियर्स करके आता है ऊपर से, तो थोड़ा सा ओपनिंग होता है यहाँ पे, जैसे स्मॉल ओपनिंग इन द कैप्सूल, ये ऐसे आएगा टुचुक एंड ये इसके अंदर जाएगा, ऊपर से आएगा ना, तब वो बाइसेप्टल ग्रूव के अंदर जाता है, ठीक है। यू अंडरस्टैंड बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आई नो यू आर वेरी एंथु, यू आर जस्ट स्टार्टेड, सो बहुत एंथु रहता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट इज व्हाट आई अश्योर यू। लास्ट ईयर के बच्चे देखो, दे रिस्पोंडेड द टेलीग्राम एंड ऑल, दे हैव डन वेरी वेल, बहुत स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन भी मिला है, द रिजल्ट्स आर आउट, डिस्टिंक्शन भी मिला है, अंडरस्टैंड। सो जस्ट हैव पेशेंस, जस्ट बिलीव इन व्हाट यू आर स्टडीइंग एंड व्हाट इज बीइंग लर्नड, विश्वास रखो, थिंग्स विल बी परफेक्ट, दैट मच आई कैन अश्योर यू, ठीक है। आर्टरीज बाद में बोलता हूं, आर्टरीज दो ही आर्टरीज याद रखना बस, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, बाद में यू विल अंडरस्टैंड। एक्सिलर बाकी है बच्चे, एक्सिलरी आर्टरी है तो यू विल अंडरस्टैंड इट लेटर, फाइन। ओके, नाउ वी कम टू द शाफ्ट। चलो बच्चों शाफ्ट में आते हैं। शाफ्ट, अब शाफ्ट इज सर्कुलर इन इट्स अपर पार्ट एंड इट्स ट्रायंगुलर इन इट्स लोअर पार्ट, मतलब ऊपर गोल है, सर्कल है, नीचे ट्रायंगुलर बनता है शाफ्ट। अब शाफ्ट के तीन बॉर्डर्स होते हैं, शाफ्ट के तीन बॉर्डर्स होते हैं। साइड ऑफ द ह्यूमरस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हां, एक मिनट, अपर एंड शोस द प्रेजेंस ऑफ हेड, हेड ऊपर है, एपिकॉन्डाइल्स नीचे है, ऐसे तो नहीं पकड़ोगे सर, दिस इज द ह्यूमरस। सर पूछेंगे बेटा शीर्षासन कर रहे हो क्या? शीर्षासन मतलब हेड डाउन, पैर ऊपर, नो सॉरी सॉरी सॉरी। So head is upper end shows the presence of head, नीचे होते हैं epicondyles, so upper lower clear है। कोई भी बोन में upper lower number 1, second anterior posterior, medial lateral,
तीन चीजें, अपर लोअर, एंटीरियर पोस्टीरियर, मीडियल लैटरल। सो अपर एंड में हेड है, लोअर एंड पे एपिकॉन्डाइल्स है। हाँ, ये एपिकॉन्डाइल, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली, मतलब ये मीडियल साइड हो गया, एंड द बाइसेप्टल ग्रूव इज एंटीरियर। बाइसेप्टल ग्रूव आगे होता है। अगर मैं ऐसे पकड़ूं, मैं बोलता हूं सर दिस इज द ह्यूमरस ऑफ राइट साइड, वाई अपर एंड पे हेड है, लोअर एंड पे एपिकॉन्डाइल्स है, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली फॉर माय राइट साइड, बट वेयर इज द बाइसेप्टल ग्रूव? बाइसेप्टल ग्रूव नहीं दिखता, बाइसेप्टल ग्रूव पीछे गया, गलत है, बाइसेप्टल ग्रूव आगे होता है। सो दिस इज द ह्यूमरस ऑफ माय लेफ्ट साइड, परफेक्ट, माय लेफ्ट साइड। सो कोई भी है ना, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ? अपर एंड लोअर एंड, नंबर 1 मीडियल लैटरल, नंबर 2 एंटीरियर पोस्टीरियर, ये तीन चीजें याद रखना, सिंपल है। Okay, now we come to the shaft. Okay, I'll change the slide for you. Okay, shaft के तीन borders है बच्चों, देखो just try to understand, थोड़ा सा confusing है ये। तीन borders है, number 1 दिख रहा है ये, number 1 is the medial border, number 2 is the anterior border and number 3 is the lateral border. I'll start. ये कौन है? Lesser tubercle। ये क्या है? medial lip of bicipital groove, दिख रहा है? ये medial lip of bicipital groove continues down as the medial border and ये आता है medial epicondyle के पास, medial epicondyle, it comes down to the medial epicondyle, that's the medial border. So medial border begins from the lesser tubercle, हाँ, I'll just draw this for you, मैं draw करता हूँ। So ये है अपना humerus, that's the shaft. That's the shaft and that's a medial epicondyle, lateral epicondyle, medial epicondyle, lateral epicondyle. ठीक है, ये बाद में देखेंगे। Fine. That's a lesser tubercle, that's a greater tubercle. So anterior border begins from the medial lip of the bicipital groove and goes along the medial epicondyle. ये क्या हो गया? Medial border, medial border. ठीक है, lateral border और anterior border बोलो, anterior border. ठीक है, begins from the greater tubercle से start होता है, मतलब ये lateral lip of bicipital groove and it ends here. यहाँ पे एक tuberosity होती है जिसका नाम है deltoid tuberosity. So anterior border begins from the lateral lip of the bicipital groove, and it ends in deltoid tuberosity. यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर नीचे इतना शार्प नहीं है, नीचे इतना दिखता नहीं है वो। Medial border is very sharp. Medial border begins from the medial lip of the bicipital groove, ये नीचे आ गया, and it is continuous with medial epicondyle. Anterior border begins from the lateral lip of bicipital groove and नीचे आके it merges with deltoid tuberosity. ये देख रहे हो deltoid tuberosity। अब ये क्या border है? This is the lateral border. The lateral border begins from the lateral epicondyle and फिर ये पीछे जाता है, that's the lateral border, बस lateral border, ये medial border है, ये lateral border पीछे की तरफ जाता है, ऐसे पीछे की तरफ, it goes back side। समझ में आ रहा है? हाँ, deltoid tuberosity is insertion of deltoid. Medial border जो है, it begins from the medial lip of the bicipital groove, that's the medial lip of bicipital groove. Medial lip of bicipital groove से नीचे जाता है along the medial epicondyle, medial border. Lateral border begins from the lateral lip of bicipital groove and ये deltoid tuberosity पे खत्म हो जाता है। Posterior border is from the lateral epicondyle and ये पीछे जाता है, पीछे towards पीछे की तरफ जाता है, it goes back side। समझ में आया बच्चों? समझ में आया ये border? समझ में आया? Yes? Okay, so these are the borders. Now see, now just try to understand this. Muscles देखिए, muscles on the shaft of the humerus, shaft पे muscles देखिए। Okay, fine. तो यहाँ पे यह अपना स्कैप्यूला, यह अपना कोरोकॉइड ट्रेसिस, and there was a muscle here which begins from here and goes here. What is this area? This is the arm. ये एरिया ना, यह है आर्म। आर्म का दूसरा नाम है ब्रेकियम। आर्म है, आर्म is also known as brachium. This muscle begins from the coracoid process and gets inserted on the humerus. नाम बोलो, what is the name of this muscle? It begins from the coracoid process and ये जाएगा humerus के medial side पे, ये medial side पे जाता है humerus के, begins from the coracoid process, inserts on the medial aspect of the shaft of the humerus. इसके साथ इसका friend भी था, there was one friend also, एक friend भी था इसके साथ। What's this muscle? बोलो, coracobrachialis. Very good. यह है coracobrachialis. Coracobrachialis के साथ कौन था? Friend, short head of biceps. Friend है short head of biceps. हाँ, ये short head of biceps है, fine. What is this muscle? ये क्या muscle है? Which comes like this and gets inserted here. This is the insertion of deltoid. ये क्या है? Deltoid tuberosity. That's deltoid. So ये side पे deltoid, ये side पे coracobrachialis. Fine. Now there's a muscle here. There's a muscle which arises from the lower half of the shaft of humerus. इसका नाम है brachialis. It's a muscle of the arm. Brachium. Arm मतलब brachium. So anything in the arm is brachium. Brachialis. Coracobrachialis. So brachium. ठीक है? So muscle attached to the shaft of the humerus. पढ़ रहे बच्चे? Muscle attached to the shaft of the humerus. On the medial side, coracobrachialis. On the lateral side, deltoid. And below this is the origin of brachialis. समझ में आ रहा है ये बच्चों? Are you able to follow this? अब ये brachialis and all are new, हाँ, brachialis and all are new muscles, अभी ये आर्म में आएंगे। coracobrachialis, ये सब आर्म के muscles हैं, that will study later, वो बाद में पढ़ेंगे। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? Is this clear to all of you? बोलो। So arm में will study the coracobrachialis, तभी मैं पूछूंगा coracobrachialis का origin. You'll say, sir, tip of the coracoid process of scapula along with the short head of biceps. Very good. Brachialis का origin, it arises from the shaft of the humerus below the insertion of coracobrachialis. Very good. Yes, fine है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? बोलो, if it's clear you tell me. AIIMS रायपुर, hello, done, ये क्लियर है? Now coming to the lower end, हाँ, lower end, चलो इतना क्लियर है ना? अब पहले पीछे देखते हैं, we'll go back side, हम ये what are we doing? आगे का पार्ट देखना, we're seeing the front part. Now let us see the back side देखते हैं। Let us see the back side of the humerus, that's the back side of the humerus, yeah, that's the back side of the humerus. Fine, यहाँ पे there is a groove like this, इसका नाम है spiral groove. This is the posterior aspect, हाँ, posterior aspect. So posterior aspect पे यहाँ पे groove होती है, नाम है spiral groove. About the spiral groove, this is the lateral head of triceps, lateral head of triceps का origin है।
below the spiral groove, this is medial head of triceps, and what was that? ये क्या था? याद है ये? That's an infraglenoid tubercle. याद है infraglenoid tubercle? That was a long head of triceps. Triceps मतलब तीन heads. हाँ, short head of biceps कहाँ पे insert होगा बच्चे? बाद में biceps goes here down into the forearm. वो बाद में, हाँ, वो बाद में देखेंगे. अभी देखो, ये देखो पीछे कौन है? This is the bicipital. I mean, this is the spiral groove. Spiral groove का दूसरा नाम है radial groove. Radial दिख रहा है ये? Radial groove. बच्चे बाइसेप्टल ग्रूव अलग है, बाइसेप्टल ग्रूव इज डिफरेंट, रेडियल ग्रूव इज डिफरेंट. बाइसेप्टल ग्रूव आगे, स्पाइरल ग्रूव और रेडियल ग्रूव पीछे. स्पाइरल ग्रूव के ऊपर अराइजेस द लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, स्पाइरल ग्रूव के नीचे इज द मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और एक हेड है ट्राइसेप्स मतलब थ्री हेड्स, लॉन्ग हेड, लैटरल हेड, मीडियल हेड. द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स अराइजेस फ्रॉम द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला. The lateral head of triceps arises above the spiral groove, and the medial head of triceps arises from the shaft below the spiral groove. Fine है? Is this clear to all of you? बच्चों क्लियर है, समझ में आ रही है? शाफ्ट यहाँ तो कुछ डाउट है तो बोलो. दोनों साथ में ड्रॉ करते हैं. I draw both the things simultaneously. दोनों साथ में ड्रॉ करते हैं. देखो, I'll draw both of them together. Try to understand this. This is fine. That's brachialis. That's medial head of triceps. Lateral head of triceps. ठीक है? This is coraco, brachialis. That's deltoid. Right? समझ में आ रहा है बच्चों? Are you able to follow this? इसको लिखता हूँ anterior. इसको लिखते हैं posterior. बोलो my dear children, is this clear to all of you? और एक दो लेक्चर्स जाने तो you'll start getting a hold on the subject. Tell me if this is clear or no. हाँ, रेडियल आर्टरी इज फाइन. रेडियल आर्टरी इज द कंटेंट ऑफ बाइसेप्टल. रेडियल आर्टरी क्या? रेडियल आर्टरी क्यों लिखा है बच्चे? ब्रेकियलिस का ओरिजिन है. ओरिजिन ऑफ ब्रेकियलिस. अभी ओरिजिन ही पढ़ेंगे बच्चा. इंसर्शन अभी ओरिजिन यहाँ पे है ना. ओरिजिन यहाँ पे है. ये जो भी बोन्स है ना, ह्यूमरस सेरेस होता है, दे विल ऑल गो टू द फोरआर्म. फाइन है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज द लोअर एंड. बाकी है बच्चों. इज दिस फाइन? क्लियर है सबको? बोलो. आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स. हाँ, अभिषेक फाइन है? ओरिजिन है ब्रेकियलिस का. सौम्या फाइन. खंडेराज वर्कड़ है ना? हाँ, वर्कड़. रेडियल आर्टरी यहाँ नहीं आती बच्चे. रेडियल आर्टरी नहीं. दिस इज फाइन. ओके, सो लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल आपको पता है. ये सब है. देखो, कोराको ब्रेकियलिस, डेल्टॉइड है, ये ब्रेकियलिस है, पीछे है ट्राइसेप्स, मीडियल हेड, ये है लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स. फाइन, बाकी सब तो क्लियर है. सबस्कैपुलरिस एंड ये तीन मसल्स, ये दो मसल्स क्लियर है. एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हाँ, ये ब्रेकियलिस है, ये मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स है. फाइन. सो इंटरट्यूबरकल सर्कस आपको पता है. शाफ्ट भी मैंने बोला आपको. एवरीथिंग आई टोल्ड यू. व्हाट इज दिस बॉर्डर व्हिच बिगिंस फ्रॉम द मीडियल साइड? व्हाट इज दिस बॉर्डर? दैट्स अ मीडियल बॉर्डर. व्हाट इज दिस बॉर्डर? ये होगा उसका एंटीरियर बॉर्डर, एंड ये होगा लैटरल बॉर्डर. व्हाट इज दिस? ये स्पाइरल ग्रूव. ये पीछे से देख रहे हो, ये स्पाइरल ग्रूव है. फाइन. So everything I've given you in attachments also. Fine. Now coming to the lower end. बच्चे फाइन है? ये हेलो, किधर गए सब? Where are all of you? बोलो. If that's clear, just put a thumbs up so I proceed. थक गए क्या? Are you exhausted? चलो, come on students, put in some energy. Come on, answer. हाँ, okay, sorry, लिखा. Radial artery in the radial groove नहीं है रे बच्चे. Radial artery in the radial groove इतना easy होता था तो anatomy should have been so nice, so easy. No, it's not like that. Radial artery नहीं होती radial groove में बच्चे. It's a profunda brachia artery. How to differentiate between origin and insertion? अरे बच्चे वो याद रखना है. You just have to remember that. कॉन्डाइल्स दिखाई देंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे. कॉन्डाइल्स मतलब एपिकॉन्डाइल्स है वो. कॉन्डाइल्स नहीं है बच्चे. कॉन्डाइल्स नहीं है वो, एपिकॉन्डाइल्स है. एक दो लेक्चर्स जाने दो और एक बार वो मसल समझ में आता है ना, यू विल गेट अ होल्ड ऑन द सब्जेक्ट. थोड़ा पेशेंस रखो. जस्ट बी विद मी. जितना मैंने पढ़ा है उतना पढ़ो अच्छे से. अंडरस्टैंड? इट विल बी परफेक्ट. डोंट वरी. चलो, कमिंग टू द लोअर एंड. अब लोअर एंड देखना. लोअर एंड. सो विल जस्ट मेक द लोअर एंड. अब ये लोअर एंड बनाते हैं. ओनली द लोअर एंड. सो दैट्स मीडियल साइड. सो दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल. कॉन्डाइल नहीं है. कॉन्डाइल मतलब बड़ा होता है. कॉन्डाइल इज अ बिग थिंग. लाइक फीमर में होगा, टिबिया में होगा कॉन्डाइल्स. ये छोटे एपिकॉन्डाइल्स. मीडियल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल. मीडियल एपिकॉन्डाइल. एक मिनट मैं लिखता हूं. मीडियल एपिकॉन्डाइल. ये व्हाट इज दिस? लैटरल एपिकॉन्डाइल. मीडियल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल. अब यहाँ पे एक रिज होती है. रिज. व्हाट इज दिस वन? इसको बोलते हैं मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज. सुप्रा एपिकॉन्डाइलर रिज होना चाहिए, बट इट इज नेम्ड एज मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज. एंड ये क्या होगा? लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज. सो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज. फाइन. अब यहाँ पे एक पुली आता है. पुली है ना, पुली. गांव में होता है ना, गांव में टू रिमूव वाटर. वो ना पानी निकालते हैं ना वेल से. दैट्स पुली. याद है? द बकेट. जैसे गांव में ऐसे एक पुली होता है, एंड फ्रॉम दिस पुली द बकेट गोस डाउन. हां, ये ऐसे बकेट होता है, एंड यहाँ पे अपन बैठ के वी आर पुलिंग दिस पुली ऐसे. सो पुली इज नोन एज ट्रॉक्लिया. सो ट्रॉक्लिया इज अ पुली. सो ये है ट्रॉक्लिया. ऑन द मीडियल साइड ट्रॉक्लिया होता है. एंड यहाँ पे देयर इज समथिंग नोन एज कैपिचुलम. हां, दिस इज नोन एज कैपिचुलम. हैव अ लुक एट दिस. See,
देखो देखो बच्चों, ये क्या है? मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये है लैटरल एपिकॉन्डाइल। ये क्या होगा? मीडियल सुप्रा, दिख रहा है ना? हाँ, ये है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ये है लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। व्हाट इज दिस? पुली पुली दिख रहा है ये? ट्रॉक्लिया। एंड व्हाट्स दिस? कैपिचुलम। ट्रॉक्लिया एंड कैपिचुलम। फाइन, ट्रॉक्लिया एंड कैपिचुलम। व्हाट इज दिस? फोसा। इसके ऊपर एक डिप्रेशन होता है, इसके ऊपर देयर इज अ डिप्रेशन, इसके ऊपर देयर इज अ डिप्रेशन। इसका नाम है कोरोनॉइड फोसा, कोरोनॉइड फोसा। एंड इसके ऊपर एक डिप्रेशन होता है, इसका नाम है रेडियल फोसा, रेडियल फोसा। ये देखो ना, व्हाट विल आर्टिकुलेट, अभी मेरे पास वो बोन अभी नहीं है। व्हाट इज दिस आर्टिकुलेटिंग? यहाँ पे रेडियस होगा, यहाँ पे अल्ना होगा। ये रेडियस है ना, रेडियस व्हेन वी एक्सटेंड, ये एक्सटेंडेड है, ये रेडियस है समझो। तो रेडियस ऐसे फोल्ड करोगे ना, आर्म को फ्लेक्स करोगे ना, फ्लेक्स, द हेड ऑफ द रेडियस गोस इनटू दिस, हेड ऑफ द रेडियस इसके अंदर जाता है, फ्लेक्स करेंगे तो हेड ऑफ द रेडियस इसके अंदर जाएगा। सो दिस इज नोन एज रेडियल फोसा। एंड अल्ना ना, अल्ना, अल्ना का एक प्रोसेस होता है, कोरोनॉइड प्रोसेस। सो जब अपन फोल्ड करते हैं ना, सो कोरोनॉइड प्रोसेस गोस इनटू दिस फोसा, कोरोनॉइड फोसा। समझ में आ रहा है? सो इसका नाम है कोरोनॉइड फोसा, इसमें कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना बैठ जाता है। एंड रेडियल फोसा में द हेड ऑफ द रेडियस फिट्स इनटू दिस रेडियल फोसा। वैसे पीछे देखोगे पीछे, तो ये बड़ा सा फोसा है, इसका नाम है ओलेक्रेनॉन फोसा, ओलेक्रेनॉन फोसा, पीछे ओलेक्रेनॉन फोसा। एक मिनट, आई जस्ट सी, अगर मुझे वो मिलता है बोन पाल सी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, तब तक ये देख लो। हां, आई जस्ट सी। ओह आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, यू आर लकी। चलो आप लकी हो, आप लकी हो, यू आर वेरी लकी, यू गॉट दिस। लुक, ये ना, ये रेडियस है, देखो ये रेडियस है, दिस इज द रेडियस। व्हाट इज दिस फॉर द रेडियस? हेड ऑफ द रेडियस, ये हेड है, तो ये ऐसे आर्टिकुलेट करता है। व्हाट इज दिस? जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट। अब ये हेड ऑफ द रेडियस फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स तो विल फिट इनटू दिस, ये देखो इसके अंदर चला गया। द हेड ऑफ द रेडियस गोस इनटू दिस। व्हाट इज दिस? फोसा, रेडियल फोसा, रेडियल फोसा। यस, ऐसे। सो ये क्या फोसा है? रेडियल फोसा। व्हाट इज दिस? अल्ना, ये अल्ना ऐसे फिट होगा। ये क्या है? ट्रॉक्लिया। तो अल्ना के दो प्रोसेसेस है, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस, इसका नाम है कोरोनॉइड प्रोसेस। एंड ये बड़ा सा दिखता है स्नेक जैसा, स्नेक जैसा। व्हाट इज दिस प्रोसेस? ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। ये प्रोसेस का नाम कोरोनॉइड प्रोसेस, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस। अब ये फिट हो गया इसके अंदर, व्हेन वी फ्लेक्स तो ये कोरोनॉइड प्रोसेस फिट्स इनटू दिस। व्हाट इज दिस फोसा? कोरोनॉइड फोसा। एंड ये ना, ये ऐसे जाता है। सो व्हाट इज दिस फोसा? ओलेक्रेनॉन फोसा। सो पीछे होता है ओलेक्रेनॉन फोसा, ये है ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, एंड ये है कोरोनॉइड फोसा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो ये है ऐसे, पीछे की तरफ होता है ओलेक्रेनॉन फोसा। आई जस्ट मेक दिस फॉर यू। ओलेक्रेनॉन फोसा पीछे होता है, ये पीछे। समझ में आ रहा है? बस थोड़ा ही है विक्रम, थोड़ा ही है, थोड़ा ही है। अब ये डिफिकल्ट है, जितना समझना है समझ लो, बाद में वापस आई रिपीट दैट, आई रिपीट दैट, आई रिपीट दैट। ठीक है, सिंपल है। लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, देखो एक बार वापस रिपीट करता हूं, वो डिफिकल्ट है बच्चों, व्हेन वी हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग, बार बार रिपीट करना पड़ता है। लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, ये है मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये है लैटरल एपिकॉन्डाइल, दिस इज द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ये है लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, दिस इज द ट्रॉक्लिया, पुली, ये है कोरोनॉइड फोसा, ये है कैपिचुलम, ये है रेडियल फोसा, पीछे होता है ओलेक्रेनॉन फोसा। दैट्स इट, दैट्स इट। लिगामेंट होता है ना बच्चे, लिगामेंट इज देयर, लिगामेंट होता है, दैट विल सी ऑल लेटर, बाद में पढ़ेंगे सब। एन्युलर लिगामेंट होता है, हेड में एन्युलर लिगामेंट होता है। सी नो हाउ ब्यूटीफुल इट इज, आई मीन कैसे बना है ना। वी शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दिस। हम मस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं, वो फ्रैक्चर होता है ना तब समझता है। फाइन बच्चों, बस बाकी उसका ओरिजिन बाद में देखेंगे, विल सी द ओरिजिन लेटर बिकॉज़ नाउ इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये लोअर एंड पे है, आर्टिकुलर पार्ट मतलब व्हिच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट, एंड दैट्स अ नॉन आर्टिकुलर पार्ट, दिस विल रिपीट इट अगेन लेटर। फाइन फाइन, तो कैपिचुलम, ट्रॉक्लिया, ऑल दिस थिंग्स, ये एक्सटेंसेस बाद में देख लेंगे, विल सी दिस लेटर। अब क्या पूछते हैं एग्जाम्स में? व्हाट आर द नर्व्स रिलेटेड टू द ह्यूमरस, ये पूछता है, बस एक थोड़ा सा टाइम है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। मेडिकल के नोट्स में बोन्स में होगा ना, बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब। सो व्हिच आर द नर्व्स रिलेटेड टू दिस बोन? देयर इज अ नर्व व्हिच वाइंड्स अराउंड द नेक ऑफ द ह्यूमरस, देयर इज अ नर्व व्हिच वाइंड्स अराउंड द नेक ऑफ द ह्यूमरस। एक नर्व होती है जो ऐसे वाइंड करती है, दैट इज द एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व है ना, सर्जिकल नेक को वाइंड करती है ऐसे, एक्सिलरी नर्व। तो देखो ह्यूमरस को है ना, रोटेटर कफ आगे सपोर्ट करता है, ऊपर सपोर्ट करता है, पीछे सपोर्ट करता है। मतलब ये ह्यूमरस को आगे सपोर्ट है, तो ह्यूमरस आगे नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, रोटेटर कफ है। सो ह्यूमरस ऑलवेज गोस डाउन। तो डिसलोकेशन होता है ना, डिसलोकेशन दैट इज इंफीरियर एंड थोड़ा सा एंटीरियर। सो व्हिच डिसलोकेशन इज कॉमन? इंफीरियर डिसलोकेशन इज कॉमन, इंफीरियर डिसलोकेशन। हां, तो जब डिसलोकेट होगा ना, बस एक 5-10 मिनट और, हां, ये एक्सिलरी नर्व है, डिसलोकेशन हो गया, एक्सिलरी नर्व इज डैमेज्ड, ओह एक्सिलरी नर्व इज डैमेज्ड, दो मसल्स गए, डेल्टॉइड, टेरेस माइनर, एक क्यूटेनियस नर्व गया, अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। सो द नर्व्स रिलेटेड टू द ह्यूमरस, नंबर 1 इज द एक्सिलरी नर्व, पीछे पीछे। ये क्या था? स्पाइरल ग्रूव, रेडियल ग्रूव। उसमें रेडियल आर्टरी नहीं होती बच्चे, उसमें रेडियल नर्व होती है, रेडियल नर्व, इट्स नॉट रेडियल आर्टरी, द रेडियल नर्व लाइज इन द रेडियल ग्रूव। एंड बहुत बार ये मैंने ना इंस्टाग्राम पे भी दिया, इंस्टाग्राम, आई गॉट एन इंस्टाग्राम चैनल, फॉलो दैट, डॉक्टर प्रदीप अंडरस्कोर पवार। उसमें मैंने छोटे-छोटे रील्स इन अ फनी वे आई पुट, ओके। तो अपन जब पढ़ते हैं ना, सी यू सिटिंग ऑन द बेंच, आप कुछ लिख रहे हो, हां, नोटबुक पे, एंड सडनली योर हैंड गोस बैक, आर्म पीछे जाता है, शॉक लगता है, शॉक लगता है ना ऐसे फिंगर्स में, योर ह्यूमरस पीछे जाके लगता है ना, पीछे के बेंच को ऐसे लगता है, टक, एंड यू गेट अ शॉक, झुनझुनी आता है, मुंगी आता है। What is the nerve here? ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है, मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे एक नर्व होती है, नाम है अल्नार नर्व, अल्नार नर्व, राइट? So the nerves related to the humerus, number 1 axillary nerve around the cervical neck, number 2 is the radial nerve in the spinal groove, and number 3 is the ulnar nerve behind the medial epicondyle, ulnar nerve. बस you have to know this, you have to know this. Fine, so that's nerves related to the humerus. अब which is the commonest site of fracture? एक तो upper 1/3 and lower 2/3 यहाँ पे इंजरी होता है, तो हीलिंग बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, because less blood supply होता है, less blood supply. So which is the commonest site of fracture? जैसे clavicle का commonest site is medial 2/3, lateral 1/3, that's the commonest site. Second, humerus का just above this, इसको बोलते हैं supracondylar fractures, यहाँ पे इंजरी होता है, like you're falling down. हाँ, अब जब भी अपन गिर रहे हैं तो अपन अक्षय कुमार जैसे तो नहीं गिरेंगे, ये ऐसे जाके ऐसे तो नहीं गिरोगे ना. When you're falling down, you will always prevent your body from touching the ground. अपने बॉडी को ग्राउंड पे टच होने से अपन हमेशा बचाएंगे. So क्या करोगे? We'll put the hand in between. अब हैंड को बीच में डालेंगे तो जितना फोर्स से गिरोगे उतने बोन्स फ्रैक्चर होंगे. It depends on your luck. हाँ, जो गिर रहा है उसके लक पे. अगर बहुत जोर से गिर रहा है, बहुत जोर से गिर गया and he puts his hand, number 1 clavicle गया, number 2 humerus गया,
नंबर 3 रेडियस भी गया, रेडियस भी गया। तो दिस फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस इज नोन एज सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। सो जब ये फ्रैक्चर होता है ना, सो ये अपर, ये ऐसे टूट गया, तो अपर सेगमेंट आगे जाता है ऐसे, एंड लोअर सेगमेंट पीछे जाता है ऐसे, ऐसे ये टूट गया। सो अपर सेगमेंट आगे गया, लोअर सेगमेंट पीछे गया। तो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है, नर्व होती है, मीडियन नर्व होती है यहाँ पे, दैट विल स्टडी लेटर। सो मीडियन नर्व डैमेज होती है, आर्टरी है, व्हाट इज दिस, आर्म इज नोन एज ब्रेकियम, 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 आर्टरी इज नोन एज ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। सो जब ये ह्यूमरस फ्रैक्चर होता है ऐसे, सो ब्रेकियल आर्टरी इंजरी हो सकती है, मीडियन नर्व इंजरी हो सकती है, मीडियन नर्व इज इंजर्ड, ब्रेकियल आर्टरी इज इंजर्ड। हाँ, ये सब बाद में पढ़ोगे आप, यू विल अंडरस्टैंड इट लेटर। बस इतना यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉलो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, याद रखना, लोअर फ्रैगमेंट बैकवर्ड्स, अपर फ्रैगमेंट आगे गया, में इंजर्ड द मीडियन नर्व और द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी को इंजरी हो गया तो एक कॉन्ट्रैक्चर होता है ऐसे, इसका नाम है वोकमन्स कॉन्ट्रैक्चर, दैट विल स्टडी लेटर। व्हेन द ब्रेकियल आर्टरी इज इंजर्ड इट लीड्स टू वोकमन्स कॉन्ट्रैक्चर। फाइन, दैट्स ओके बच्चे, दैट्स ओके, नर्व काट ली होगी, बट वाइवा में गलत नहीं करना, जो गलती करना है यहाँ पे करो, जो चाहिए वो बोलो, दैट्स फाइन, बट वाइवा यू शुड बी परफेक्ट, परफेक्ट। उतना रिवीजन करेंगे अपन, विल रिवाइज है ना, देन यू विल बी परफेक्ट। अब जो डिफिकल्ट लग रहा है ना, इट विल बी वेरी इजी फिर, ठीक है बच्चों। बस इतना याद रखना, ह्यूमरस का लोअर एंड वापस नेक्स्ट टाइम करेंगे अपन रिवाइज, बिकॉज़ लोअर एंड पे ये मसल्स है ना, सो इट टेक्स टाइम। Arman, if you want to go, you go. Understand? Don't disturb the class if you are so much exhausted. Arman, if you are exhausted, you can leave the class. Do not disturb the class. Anyone who is exhausted, leave the class. Fine. Don't say all these things, nonsense things in the class. Tata goodbye. What do you mean? 2 घंटे नहीं हुए अभी तक. Understand? And अगर इतना heavy लग रहा है, so you have to adjust. You have come for medicine. When we take PG lectures, we take it for 12 hours. Morning 9 to evening 9. 12 hours. बैठते हैं बच्चे, PG के बच्चे. After your MBBS, you go for your PG entrance lectures are for 12 hours, right? You can't sit for 2 hours. Then I don't want to comment anything on you. Is this clear? Wokman's canal, Haversian canal को connect करते हैं ना, वो Wokman's canal होता है. Wokman's canal अलग है, Wokman's contracture अलग है. हैवर्शियन कैनाल कहां पे होता है? बोन, हैवर्शियन कैनाल होता है ना बोन के अंदर, तो दो हैवर्शियन कैनाल को जो कनेक्ट करता है वो वोकमन्स कैनाल होता है, वो बोन में। फाइन, ओके, दिस इज वोकमन्स कॉन्ट्रैक्चर। वो क्या है ना वोकमन्स कॉन्ट्रैक्चर, दैट विल स्टडी लेटर। बस इतना याद रखना, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस होता है। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो गया तो क्या होता है, ये जो अपर सेगमेंट है वो आगे गया, लोअर सेगमेंट पीछे गया, ऐसे ऐसे। जब ये आगे गया तो आगे होता है मीडियन नर्व, ये सब बाद में पढ़ोगे आप। मीडियन नर्व होती है, ब्रेकियल आर्टरी होती है, वो इंजरी हो जाती है, दैट इज इंजर्ड, दैट्स इट। कॉन्ट्रैक्चर मीनिंग वो ऐसे 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 खींच लेता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर मीनिंग खींच लेता है, लाइक बर्न्स होता है ना, बर्न्स में कैसे होता है, बर्न्स होने के बाद कैसे फेस कैसे होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, देखा, दैट इज कॉन्ट्रैक्चर। सी बच्चों, यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ इंक्रीजिंग योर कंसंट्रेशन टाइम। अभी आप तो 12 के लिए पढ़े हो ना, यू बीन स्टडीइंग फॉर योर 12th स्टैंडर्ड, योर सीटी, योर नीट, सॉरी योर नीट, यू बीन स्टडीइंग, सो यू यूज्ड टू स्टडी। सी मेडिसिन इज डिफिकल्ट एंड सबसे डिफिकल्ट एनाटॉमी है। जितना बड़ा एनाटॉमी है उतना फिजियो बायोकेम जोड़ोगे तो भी उतना नहीं होता। एनाटॉमी इज द मोस्ट वास्ट सब्जेक्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। डिफिकल्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्ट है, बट एक दो बार पढ़ोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड इट, एंड वंस यू अंडरस्टैंड इट बिकम्स इजी। बट व्हेन आई एम टीचिंग, डू नॉट डिस्टर्ब मी, अंडरस्टैंड? अल्ना फ्रैक्चर, हाँ अल्ना भी होता है, रेडियस भी होता है, अल्ना भी होता है फ्रैक्चर, हाँ अल्ना रेडियस फ्रैक्चर होता है। फाइन, दिस इज क्लियर। कुछ डाउट्स है तो बोलो अभी, कुछ डाउट्स है? देखो आज हमने सब मसल्स भी रिवाइज किया, आज हमने सब स्कैपुलरिस रिवाइज किया, सुप्रास्पाइनटस रिवाइज किया, इंफ्रास्पाइनटस एंड टेरेस माइनर भी रिवाइज किया है। वी रिवाइज द ट्रेपेजियस, वी रिवाइज डेल्टॉइड, अंडरस्टैंड एवरीथिंग वी हैव डन। बाकी ये आपको सब पढ़ना है। ये डॉबक साइन था, डॉबक साइन क्या था मैंने बोला, ये एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे एक बर्सा होता है, सब एक्रोमियल बर्सा। अगर वो इन्फ्लेमेशन होता है, सो व्हेन वी प्रेस ओवर द एक्रोमियल प्रोसेस तो वो पेन होता है, पेन। बट व्हेन वी एब्डक्ट तो ये बर्सा चला जाता है बिलो द कोरैको एक्रोमियल आर्च, दिस इज नोन एज डॉबक साइन, डॉबन साइन, DARN, DAWBARN, डॉबक साइन। हाँ, ये क्या है, ये एक्रोमियल प्रोसेस है, ये कोरकोइड प्रोसेस है, ये है कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, दिस इज द एक्रोमियल प्रोसेस। ये जो देख रहे हो, दिस इज द सब एक्रोमियल बर्सा, ये होता है सब एक्रोमियल बर्सा। तो ये बर्सा के साथ है तो ये पेन होता है, बट व्हेन वी एब्डक्ट ये बर्सा आगे चला जाता है, आगे बिलो दिस कोरैको एक्रोमियल आर्च, तो पेन डिसअपीयर होता है। ये ना बच्चे असली होमोहायोइड, वो ऐसे गिरते हैं ना तो वो सुप्राकॉन्डाइलर में वैसे ही होता है, दैट इज बिकॉज़ ऑफ द मसल्स दैट आई टेल यू लेटर, वो बाद में बोलता हूं। ये ओमोहाइड एक मसल है, ये स्कैपुला से ऐसे जाता है टुवर्ड्स द हायोइड बोन, ये यहां पे आता है हायोइड बोन एंड द स्कैपुला। जो हायोइड बोन को अटैच है दैट इज सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, जो स्कैपुला पे अटैच है दैट इज इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। इट्स अ लॉन्ग मसल, लंबा सा मसल है, ऐसे आके नेक में आता है। आस्क मी, फाइन। हां, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे लैटरल एंड मीडियल लिप एक बार रिपीट कर दो, लैटरल एंड मीडियल लिप किसका बच्चे? शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे मीडियल बॉर्डर होता है, एंटीरियर बॉर्डर होता है एंड लैटरल बॉर्डर होता है। मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। फर्स्ट लेक्चर है ना डिफिकल्ट था या फर्स्ट लेक्चर अटेंड जिसने किया है फर्स्ट लेक्चर दिस इज डिफिकल्ट। ओके देखो, मीडियल बॉर्डर कहां से था? मीडियल बॉर्डर बिगिंस फ्रॉम हियर, मीडियल बॉर्डर बिगिंस फ्रॉम द मीडियल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव एंड ये मीडियल एपिकॉन्डाइल तक आता है, दैट्स मीडियल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर बिगिंस फ्रॉम द लैटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव एंड ये डेल्टा ट्यूबरासिटी तक जाता है, एंड लैटरल बॉर्डर बिगिंस फ्रॉम द लैटरल एपिकॉन्डाइल एंड ये पीछे जाता है, स्पाइरल ग्रूव की तरफ जाता है पीछे, दैट्स अबाउट इट। फाइन, ओके। मीडियल नर्व सेंटर में होता है, सेंटर में होता है मीडियल नर्व यहाँ पे। सो जब फ्रैक्चर होता है तो मीडियल नर्व इज इंजर्ड, दैट विल स्टडी बच्चे, विल स्टडी दैट। मीडियल नर्व ब्रेकियल आर्टरी सब बाद में पढ़ोगे, बस इतना याद रखो, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है बच्चे? विल स्टॉप देन, हां विल स्टॉप। और कुछ डाउट्स है तो बोलो। ब्रेस्ट लेक्चर क्लियर है ना? ब्रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी वी हैव डन द फर्स्ट लेक्चर, पेक्टोरल रीजन क्लियर है, ओरिजिन ऑफ पेक्टोरल्स मेजर, क्लैवी पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरलिस माइनर, सेरेटस एंटीरियर सब क्लियर है। मसल्स पे शॉर्ट नोट्स आते हैं, मसल्स पे शॉर्ट नोट्स आते हैं, लाइक पेक्टोरलिस मेजर पे शॉर्ट नोट आता है, बाइसेप्स पे शॉर्ट नोट आता है, बाइसेप्स पढ़ना है अपने को, सॉरी। सेरेटस एंटीरियर पे शॉर्ट नोट आता है, ट्रापेजियस पे शॉर्ट नोट आता है, ओके? जस्ट रिमेंबर दैट ब्रेस्ट इज एन LAQ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ब्रेस्ट। फिर स्कैपुलर रीजन में ट्रापेजियस कम्स, डेल्टॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हां, बाकी ये बोन्स तो प्रैक्टिकल्स में आते हैं, बोन्स आर ओनली प्रैक्टिकल्स। फाइन बच्चों, विल स्टॉप हियर देन, हां विल स्टॉप हियर तो बोलो। सबक्लेवियन ग्रूव, किसी को डाउट्स है तो पूछो, किसी को डाउट्स है तो पूछो, नहीं तो यू कैन लॉग आउट, यू कैन लॉग आउट। बच्चे सबक्लेवियन ग्रूव है ना, देखो मीडियल 2/3 है, मीडियल 2/3 ऑफ क्लैविकल है, दिस इज द मीडियल 2/3 ऑफ क्लैविकल। सो मीडियल 2/3 ऑफ क्लैविकल में ये ना, ये क्लैविकल है, मीडियल 2/3 ऑफ क्लैविकल में नीचे देखोगे ना, सो दैट्स अ सबक्लेवियन ग्रूव, ये नीचे होती है सबक्लेवियन ग्रूव। सबक्लेवियन ग्रूव पे क्या इंसर्ट होता है? सबक्लेवियस। हां मतलब कैसे ना, रुको, इसके नीचे फर्स्ट रिब है, इसके नीचे फर्स्ट रिब है, तो फर्स्ट रिब से एक मसल अराइज होता है सबक्लेवियस, वो जाके यहां पे इंसर्ट होता है, दैट्स अ सबक्लेवियन ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। क्या आयन, व्हाट हैपेंड? यू आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट यू अंडरस्टूड?
क्वेश्चन पे breast lies in the deep pectoral fascia. No, breast is in the superficial fascia. Breast is lying on the deep fascia. Breast is in the superficial fascia. Breast lies on the deep fascia. Breast is in the superficial fascia. The breast is lying on the deep fascia, pectoral fascia. Fine. Okay, we'll stop here then. किसी को और कुछ डाउट्स है तो पूछो. If you don't have doubts, you can log out. किसी को डाउट्स है? Thank you so much for your patient listening बच्चों. तो ये बोन्स इतना पढ़ लो. बस इतना ही है. बोन्स इतना पढ़ लो. Thank you. स्टर्नोहायोइड, एक मिनट, स्टर्नोहायोइड, अरे बच्चे सिंपल है. स्टर्नोहायोइड कहां से अराइज होगा? स्टर्नम. ये स्टर्नम देख रहे हो ना? स्टर्नम से हायोइड, दैट्स स्टर्नोहायोइड. ओमोहायोइड स्कैपुला से आता है, स्कैपुला से हायोइड तक. डेस्टिनेशन सेम है, मतलब कॉलेज में जाना है. यू आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, फ्रेंड दूसरे लोकेशन पे से आ रहा है, बट डेस्टिनेशन सेम है. डेस्टिनेशन क्या है? हायोइड बोन. जो स्टर्नम से अराइज होगा स्टर्नोहायोइड, जो स्कैपुला से अराइज होता है दैट्स ओमोहायोइड. हाउ कैन अ मसल पियर्स द ह्यूमरस? मसल नहीं पियर्स करता ह्यूमरस को बच्चे. अचलेश्वर, कौन सा मसल पियर्स करता है ह्यूमरस को? हां, एनोनिमस बोलो, क्या डाउट है बच्चे? क्या डाउट है बोलो. मसल नहीं पियर्स करता ह्यूमरस को. नो, क्या लॉन्ग हेड बाइसेप्स बोलो. लॉन्ग हेड बाइसेप्स पियर्स नहीं करता, वो जॉइंट से बाहर निकलता है, जॉइंट से बाहर निकलता है. लॉन्ग हेड बाइसेप्स डज नॉट पियर्स. एनोनिमस, क्या डाउट है बच्चे? बोलो. एनोनिमस एक अच्छा नाम रखो ना. हाँ, यस, मिडलरी कैविटी, यस, एनोनिमस, राइट. लैटरल वन थर्ड फ्लैट होता है, मीडियल टू थर्ड इज राउंडेड, तो उसी में होता है वो मिडलरी कैविटी. ओके, अचलेश्वर कुछ डाउट है? कौन सा मसल पियर्स नहीं करता ह्यूमरस को? मसल बोन को पियर्स नहीं कर सकता. फाइन. ओके, आई स्टॉप हियर देन. थैंक यू सो मच. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, एंड रीड ऑल दिस थिंग्स एंड देन कम फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. हाँ, ट्यूबरकल एंड ट्यूबरोसिटी दोनों सेम है, दोनों सेम है. ह्यूमरस पे ट्यूबरकल बोलते हैं, टिबिया पे ट्यूबरोसिटी बोलते हैं. दोनों एलिवेशन से. अलीशा, दोनों एलिवेशन से है बच्चे. हाँ, क्या रिया, ह्यूमरस में जो फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर पॉइंट, उसके बारे में बता दो. अरे ह्यूमरस में फ्रैक्चर होता है, दैट इज सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर. बस उतना याद रखना. उसमें मीडियल नर्व डैमेज, ब्रेकियल आर्टरीज डैमेज्ड. छोटा भीम. ओके, ब्रेकियल प्लेक्सस एक्सप्लेन करेंगे बच्चे. ब्रेकियल प्लेक्सस जितना इजी में एक्सप्लेन करता हूं ना, नो वन एक्सप्लेन्स ब्रेकियल प्लेक्सस. I'll explain brachial plexus बाद में. So next time we'll start with axilla. Next lecture axilla का होगा, फिर brachial plexus होगा. So slowly you'll understand. ठीक है, चलो, we'll stop. Thank you so much. Bye bye.